Okay. Uh, Good morning, Good everyone. morning. Good morning. Uh, Thank you for joining us on today's session uh, titled Recent Changes in Insurance and Finance Planning, which will be taken by our speaker for the day, Mr. Paras Shah. A few do's and don'ts for the meeting before we get started. One, the session is going to be roughly one and a half hours long. Up to 1 o'clock it will be. So kindly request you all to be seated in a place which is quite comfortable, have some water, headsets, uh, and good internet connectivity so that you don't need to get up thereafter. If there is any internet problem or a problem with your audio or video, you are requested to close the window and re-log in. If you still have a challenge, you can put a message on to me, but I will request you to share the message in the private mode, and I can accordingly thereafter guide you what to do. Lastly, feel free to share your feedback of the session once the session is over, along with us, or with and if you have any other speaker to be invited on our forum, then do let us know. If you all want to co-partner with us for this particular event, 10 Connect session events, which happens on Saturdays and Wednesdays, then you all can also co-partner with us. Just get connected to us, and we can find out ways how we can co-partner it. Thank you for coming over today. I will pass on the stage to Mr. Deepak Kapoor, who is playing the role of chairman today. Deepak, over to you. Yeah, thanks, Ram. Hi, good morning to everybody. It's with great honor that I welcome you all, visitors and members to 10, the Entrepreneurs Network. Just for today, I, Deepak Kapoor, will share the responsibility of the chairman. In my task, I am supported by Manoj Tahiliani, the secretary, Mangesh Patole, the relationship manager, Jagdish Punjabi, who heads a dual role as event head and a treasurer, and social media is handled by Ram Kumar. Then the Entrepreneurs Network is a not-for-profit organization. The single-minded focus of 10 is to help entrepreneurs from different business fields to come together and succeed. To know more about 10, I would request Mangesh Patole to share the AV with all of us. Yes, Yeah, Maharashtra's major industrial town, fastest growing and slated to be the most happening commercial hub. Over the last decade, Thane has grown from a small suburban town to a large, self-sustaining metropolis. Proximity to the financial capital of the country has extended ample opportunities to Thane for becoming one of the richest districts in Maharashtra. With potent factors like a well-planned infrastructure, low cost of operations, and ample business opportunities, Thane has seen a surge in the number of business ventures in the last few years. Businesses came up in industrial areas like Wagle Estate and Majivada, as well as development in residential and commercial projects on Godbandar Road gave further impetus to the growth of business in Thane. Over a period, Thane has seen opening up of various business avenues like real estate, IT and web-enabled services, engineering, manufacturing, fashion, as well as art and entertainment. With growing opportunities and upcoming business ventures comes the growing need for business networking to learn, explore, connect, and share avenues for mutual growth. Welcome the Entrepreneurs Network. The Entrepreneurs Network, popularly known as 10, was established in the year 2010 with the intent of providing a platform for entrepreneurs to share experiences, learn from and educate fellow entrepreneurs, and generate business opportunities for mutual growth. Our motto: connect, breakthrough, prosper. 10 is a platform for entrepreneurs from different business fields to come together. Members contribute connections, ideas, and time to help 10 grow. Members are rewarded with training workshops, insights, networks, and camaraderie offered by other like-minded entrepreneur members. 10 members meet every Wednesday from 7:15 a.m. to 9:45 a.m. at a pre-decided venue. The meeting is attended by members as well as by visitors invited by members. We
learn about each other's business model by having members present themselves before all attendees. In the last 5 years of its existence, TEN has provided a robust platform to its members for learning and sharing through weekly meetings, one-to-one interactions, as well as addresses by internal and guest speakers. TEN launched Open Minds, a platform for entrepreneurs, professionals, and individuals with aspirations to express and share ideas for continuous process of learning. As we move ahead on this path of connecting for mutual growth, we look forward to more hands, more heads, and more hearts to come together. So if you are an entrepreneur who understands and wants to deal with the pressures of entrepreneurship in a prepared and confident manner, you should join TEN. Be a part of TEN. Connect, break through, prosper. Hi, good morning again. Yeah, Thanks, Mangesh. Now I hand over to our Secretary Manoj Tahiliani to introduce the speaker for today. Yeah, Manoj. Manoj, unmute yourself. Manoj. I'll just check. Yeah. Guys, as we wait for Manoj to join us, could you all just share your names and the company that you all are from on the chat window? Yes. Mangesh or Deepak, Manoj's number seems to be down. Could you Okay. just try on Sanjana's number? He had connected from Sanjana's number. Right now, due to some internet connect, he seems to have logged out. Could you just try on her number? I think we can. If he's not available, then I will do the speaker introduction. Yeah, please. I think he's Okay. not able to connect him. Okay. Yeah. Ram, go ahead with it. Yeah. Friends, we have with us Mr. Paras Shah, who will be talking about the recent changes that you should know in the insurance and planning, financial planning, and while you're doing financial planning for yourselves, right? Mr. Paras Shah is a BCom and he's also a MDRT USA, CFP certified financial planner, practicing financial planning for individuals as well as for companies. He helps individuals to achieve their financial goals with peace of mind and helps SME in succession planning. He also helps SME generate funds and private investments for business development. He has over 200 plus retail clients and his mission is to educate and help 1,000 or more families to achieve their financial freedom. Thank you, Paras. We are happy to have you here. Over to you, Paras, to take over the session from here. Thank you, Ram. Am I audible? Yes, Paras. Yeah. Paras, go आवाज ahead. clear है? Yes. So good Paras, go morning, ahead. friends. Good morning, friends. I am Paras Shah. And just a disclaimer, ये कोई lecture नहीं है. जो भी experience 18 year में मुझे इस field से हुआ है और जो precaution मतलब मेरी life में जो हुआ और मुझे लगता है कि ये सारे precaution लेने चाहिए. Hello, Ram. Yeah, Paras. I am not able to get your image. Okay, I got it. Okay. No, Just he's give me there, a Ram. minute while I Let put him you on the continue. spotlight mode.
Yeah, you can go ahead, Paras, and be a Okay. slightly louder. Yeah. Okay, so this is not a lecture, just a sharing of ideas. और मुझे जो लगा, so it's just my thought, you know, मेरा सिर्फ ये थॉट है। और फाइनेंशियल प्लानिंग में 18 इयर्स से मैंने जो कुछ सीखा और वो सिर्फ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरा जो जॉब है, काम है, जो लोगों से मिलना है। मैं डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोग से, डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस ओनर्स, उनसे मिलता हूँ। तो मुझे ये मौका मिलता है लोगों का बिहेवियर जानने का और उनका फाइनेंशियल बिहेवियर कैसा है वो जानने का। तो इस बेसिस पे कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इट इज अप टू यू, कोई रिकमेंडेशन है ऐसा कुछ नहीं है, इट्स अप टू यू, एवरी पर्सन इज डिफरेंट। सो लेट्स स्टार्ट इट। मंगेश जी स्लाइड्स शेयर करेंगे प्लीज। हेलो। Yes. ये सबसे पहले ये IRDA जो होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्होंने क्या चेंजेस लाए हैं। जब लॉकडाउन 1 गवर्नमेंट ने लागू किया तब क्या प्रॉब्लम था, अब क्या है, क्या गाइडलाइन इन्होंने लाए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जब लॉकडाउन 1 आया और कोरोना के पेशेंट्स जैसे बढ़ते गए, तो वैसे हॉस्पिटल्स में आपने काफी वीडियो भी देखा रहेगा कि हॉस्पिटल्स आर कुछ भी चार्जेस लगाते थे, कुछ भी करते थे। तो इसीलिए बहुत सारे कंप्लेंट भी गए, एजेंट्स लोग के भी कंप्लेंट गए, तो IRDA ने इंटरवीन किया और काफी गाइडलाइंस अभी तो काफी सिंपल और क्लियर कट कर दिया है। तो सबसे पहले कोविड-19 जो है, बहुत सारे लोग आज भी मुझे पूछते हैं कि क्या ये हमारी एग्जिस्टिंग पॉलिसी में कवर होगा। तो कोविड-19 है ना, वायरल कैटेगरी में आता है एंड इट विल बी कवर्ड इन एवरी एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। आपके पास जो कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज है उसके अंदर ये कोविड कवर है। अगर सपोज कोई आज नया पॉलिसी लेता है, उसको वेटिंग पीरियड 15 डेज है। नॉर्मली कोई भी नया पॉलिसी लेता है तो उसके लिए वेटिंग पीरियड 30 डेज होता है, बट IRDA ने बोला है हर एक कंपनी को एग्जिस्टिंग प्लान प्लस नया पॉलिसी लेगा उसमें कोविड के लिए 15 डेज का वेटिंग पीरियड रखा है। सो इसका मतलब ये है कि आज आप अगर नया पॉलिसी लेते हो और 15th डे के बाद 16 डे में अगर आपको पॉजिटिव आ जाता है, से उसका सिम्टम्स 3-4 दिन पहले से था, बट 16th डे में भी अगर रिजल्ट उसका पॉजिटिव आ जाता है तो आपको पूरा खर्चा मिलेगा। नो इंश्योरेंस, ये जनरल गाइडलाइन है, सभी इंश्योरेंस कंपनीज की पॉलिसी में ये लागू होता है, ये आपको उसका क्लेम मिलेगा। पहले क्या था, आइसोलेशन वार्ड, इसका सब कुछ भी इन लोग चार्जेस लेते थे। IRDA ने अभी गाइडलाइन क्लियर कर दिया है, रूम रेंट कैपिंग कर दिया है 5000। 5000 इज मैक्सिमम, उससे कम ले सकते हो, ज्यादा नहीं ले सकते हो। ICU चार्जेस पर डे 7500, आइसोलेशन चार्जेस 3000 और वेंटिलेटर चार्जेस 9000 अगर रिक्वायर्ड है तो ये चार्जेस फिक्स कर दिए हैं। पहले ये कुछ भी था, लोग अब टीवी में भी न्यूज देखते थे कि पर डे अगर कोई हो जाता है एडमिट तो पर डे 25,000, 30,000, 50,000 खर्चा होता है। ये पहले होता था क्योंकि हॉस्पिटल्स लोगों ने ऐसा आर्गुमेंट दिया था कि हमको पूरा सा एक अलग वार्ड बनाना पड़ता है। बीच में एक ऐसा भी था कि जो सेंट्रल AC होता है उससे भी ये वायरस फैल सकता है। इसके लिए उन्होंने बोला कि हमको अलग आइसोलेशन वार्ड बनाना पड़ेगा, ऊपर का एक फ्लोर है, शायद कोई हॉस्पिटल है तो उसमें अलग से करना पड़ेगा, तो हमको चार्जेस ज्यादा आता है। बट अभी आज की डेट में ये चार्जेस फिक्स कर दिए। मंगेश जी नेक्स्ट स्लाइड। अभी नया पॉलिसी कल का सर्कुलर है, 23 जून का ये सर्कुलर है। नया पॉलिसी 15 जुलाई से आएगा और एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसमें आपको एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस, आपके जो प्रोवाइडर है हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर, वो आपको शायद एड ऑन भी देंगे। बट 15 जुलाई से अगर कोई नया पॉलिसी लेता है तो ये गाइडलाइन उसको फॉलो करना पड़ेगा। नया पॉलिसी में क्या आएगा 15 जुलाई से, इंडिमनिटी एंड बेनिफिट प्रोडक्ट। इंडिमनिटी प्रोडक्ट क्या होता है कि अगर आप हॉस्पिटलाइज हो गए तो जितना भी खर्चा आपका हुआ है उतना आपको मिलेगा। इंश्योरेंस में एक क्लॉज होता है कि ये प्रॉफिट करने के लिए नहीं होता है। इंश्योरेंस इज नॉट फॉर प्रॉफिट। इंडिमनिटी, जितना मेरा नुकसान हुआ है उतना मुझे पैसा दे दो, दैट इज कॉल्ड इंडिमनिटी।
लेकिन बेनिफिट प्रोडक्ट ऐसा है कि आईआरडीए ने भी हम लोग भी रेगुलर आईआरडीए को बोलते हैं, लोगों का जो फीडबैक था, और आईआरडीए ने भी सोचा कि यस, बेनिफिट प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अनक्लेम्ड एक्सपेंस होते हैं। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, हम लोग बहुत ही स्लो और एग्जांपल लेके, रियल लाइफ एग्जांपल लेके बात करेंगे। अगर कोई भी इंसान कोविड ने किसी भी तरह से अगर हॉस्पिटल में वो एडमिट होता है, तो हॉस्पिटल का खर्चा मिलता है, ये सब तो मेडिक्लेम से मिलता है, बट देर आर मेनी अनक्लेम्ड एक्सपेंसेस। जैसे अगर कोई मिलने आया, हम किसी को ना बोलते लेकिन कोई आ जाता है, फिर कोई सीनियर सिटीजन है तो उसको छोड़ने जाओ, फिर घर में एक भी आदमी अगर बीमार है तो पूरा घर का सिस्टम ये हो जाता है। हम फुल डे के लिए बाई रख लेते हैं, या उसको बोलते हैं कि ज्यादा पैसा ले लेना जरा, ये 5-6 दिन तुम जरा हेल्प कर दो, तो उसके लिए पैसा लगता है। अगर आपका रिटेल शॉप है, तो आप अगर अपने शॉप में नहीं जाओगे तो आप, आपके जो एम्प्लॉय है वो बिजनेस करेंगे या आप करोगे, उसमें फर्क होता है, तो उसमें भी एक डाउन आता है। तो इसको कवर करने के लिए कुछ था नहीं, इसीलिए आईआरडीए ने बेनिफिट प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है। ये पहले से ऑलरेडी मार्केट में है, और आईआरडीए ने ये गाइडलाइन में क्या बोला है कि 15 जुलाई से ये दोनों प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे, आपको ये मिलेगा। द पॉलिसी विल कवर द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट एट होम। ये नया चीज है। एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज जैसे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, उन्होंने ऑलरेडी उनके एग्जिस्टिंग पॉलिसी वर्डिंग में ये ऐड कर दिया है। बट आईआरडीए ने गाइडलाइन दिया है कि अगर आपका 7th, इसमें देखो पॉलिसी में वर्डिंग्स क्लियर है, द पॉलिसी कम्स विथ ऑप्शनल हॉस्पिटल के डेली कैश कवर। ये ऑप्शनल है, वो आपको ऑप्शन देंगे कि आपको ये लेना है कि नहीं लेना है, ये भी मिलेगा। और 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए। बेनिफिट विल बी पेएबल फॉर द 15 डेज ड्यूरिंग अ पीरियड, पॉलिसी पीरियड। इसका मतलब ये होता है कि 15 डेज के बाद कोई भी अगर पॉलिसी लेता है तो उसको एडिशनल 0.5% उसको डेली कैश भी मिलेगा ओवर एंड अबव हॉस्पिटल एक्सपेंसेस। मतलब क्या है, अगर कोई 5 लाख का पॉलिसी लेता है तो उसका 0.5% कम्स टू 2500 पर डे, ये भी उनको मिलेगा। उसमें ऑप्शन होगा, आपको थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा देना पड़ेगा, और वो बहुत ही नॉमिनल होता है, और वो 15 दिन तक उसको मिलेगा। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज ने ऑलरेडी ये अपने पॉलिसी वर्डिंग्स में डाल दिया है। ठीक है, और इसके लिए सेपरेट प्लान भी होता है, उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे। बेनिफिट बेस्ड पॉलिसी आईआरडीए ने बोला है कि आप इंट्रोड्यूस कीजिए, सभी इंश्योरेंस कंपनी को बोला है। दिस प्रोडक्ट शैल पे अ लंप सम बेनिफिट equal to 100% of the sum assured if policy holder test positive for COVID-19 and requires hospitalization for minimum period of 72 hours. मिनिमम सम एश्योर्ड 50,000, मैक्सिमम 3 लाख। अभी इसको समझते ये क्या होता है। नॉर्मली ये इंडस्ट्री का डेटा है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड या हम जो टीवी में देखते हैं उसको भूल जाओ, ये एकदम रिलेवेंट डेटा है। क्यों? क्योंकि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये हमको ऑल इंडिया लेवल पे जितने भी क्लेम आए हैं, जितने भी उनका एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से है, तो ये बहुत ही रिलेवेंट डेटा है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ऐसा बोलता है कि जितने भी पॉजिटिव केस आते हैं, जैसे एग्जांपल 1000 लोगों का टेस्ट हुआ, उसमें से 30 लोग पॉजिटिव आए, एग्जांपल है जस्ट, एक्चुअल फिगर आप गूगल कर सकते हो, रोज हमको यही सब डेटा मिलता है। तो से एग्जांपल 1000 लोगों का टेस्टिंग होता है, उसमें से 30 लोग पॉजिटिव आते हैं, तो 30 लोग में से 80% मतलब 24 लोग नॉर्मल रिस्क कवर में आते हैं। इन्होंने 3 रिस्क कवर आइडेंटिफाई किए हैं, नॉर्मल, मॉडरेट एंड हाई रिस्क। तो ये नॉर्मल कैटेगरी में 80% लोग आते हैं, और बाकी के जो 15% है वो मॉडरेट में आते हैं, और सिर्फ 5 से 6% लोग क्रिटिकल में आते हैं, जिसका बहुत सारा प्रॉब्लम्स मल्टीपल हो सकता है। अभी इनमें इनका जो क्लेम का एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से उन्होंने एवरेज जो इंडस्ट्री का भी डेटा है, आईसीआईसीआई एज अ कंपनी, उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं कि हर एक कंपनी में जाके, हर एक हॉस्पिटल्स में जाके ये सब भी उन लोग डेटा लेते हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि नॉर्मल, जिसका नॉर्मल कैटेगरी में क्लेम आता है, उसमें एवरेज 1 लाख टू 1,80,000 तक क्लेम आता है, डिपेंड्स ऑन हॉस्पिटल। मतलब नॉर्मल हॉस्पिटल, देखो हॉस्पिटल का भी क्लास है, आपको पता है।
Paras, you are not audible. Hello. Yes, Paras has lost connection. Ram, Okay. let him re-log in. Yeah. होता है उसकी साइज मिड का एक्टल होता है और सुपर स्पेशलिटी लाइक Paras, we lost your connection. Can you just repeat once again and be slightly more louder? अभी ठीक है हाँ अभी ठीक है. सॉरी कनेक्शन लॉस हो गया था You're audible. मैं फिर से ये टॉपिक वापस रिपीट करता हूँ ये क्लॉज आईसीआईसीआई लोम्बार्ड क्या बोलता है कि जितने भी केस आ रहे हैं या उनके पास या दूसरे इंश्योरेंस के पास उसमें से 80% नॉर्मल होता है मॉडरेट में 15% होता है और क्रिटिकल सिर्फ 6% होता है तो डरने वाली कोई बात नहीं है नंबर 1 नंबर 2 नॉर्मल जो पेशेंट होता है उसका 1,50,000 1,80,000 के करीब खर्चा आता है जो मॉडरेट में होता है उसका 3-3.5 लाख से 4 लाख के करीब करीब आता है और जो क्रिटिकल होता है उसका कुछ भी आ सकता है एक जन का 14 लाख भी बिल आया है क्योंकि डिपेंड्स क्योंकि क्रिटिकल कैसा है वेंटिलेटर में उसका एज क्या है उसको प्रीवियस कुछ प्रॉब्लम है क्या है डायबिटीज हाइपरटेंशन ऐसा कुछ है क्या तो उसमें मल्टीपल प्रॉब्लम हो सकता है तो उसमें कुछ भी आ सकता है तो ये करंट डेटा है तो उस हिसाब से हर एक हॉस्पिटल जैसे आपको मैंने बताया कि एक नॉर्मल नर्सिंग होम होता है उसके बाद एक मिड साइज एक हॉस्पिटल्स होते हैं और एक सुपर स्पेशलिटी लाइक फोर्टिज और जुपिटर या हिंदुजा है या कोकिलाबेन है वैसा होता है तो वहां पर डिपेंड करता है इस हिसाब से अभी इसमें हम लोग को ध्यान में क्या रखना है ये मेरे 15-18 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने देखा है क्योंकि आज भी लोग मुझे पूछ रहे हैं कि ये कोविड कवर हमारे पॉलिसी में है इसका मतलब लोगों को बहुत सारा पॉलिसी में मालूम नहीं होता है तो सबसे पहला क्या देखना है चेक योर पॉलिसी वर्डिंग्स लाइक रूम रेंट एक्सेट्रा नॉर्मल लोगों को बोलते हैं कि यस हमारे पास पॉलिसी है 10 लाख का पॉलिसी है 5 लाख का पॉलिसी इंडिविजुअल है डन लेकिन पॉलिसी वर्डिंग्स जब देखते हैं ना तो उसमें लिखा होता है रूम रेंट रिस्ट्रिक्टेड टू 1% ऑफ दिस सम एश्योर्ड मतलब अगर 5 लाख का पॉलिसी है तो रूम रेंट आपको 5,000 पर डे अलाउड है अगर उसके ऊपर गए तो आपका पूरा क्लेम में वो डिडक्शन होता है तो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं फिर आपके कुछ पर्सनल क्वेश्चन आंसर होंगे तो वो हम लोग भी करेंगे तो कैसा होता है ऐसे एग्जांपल 5 लाख का पॉलिसी है और आपके पॉलिसी वर्डिंग्स में लिखा है जो नॉर्मली कोई पढ़ता नहीं है तो उसमें लिखा है 1% रूम रेंट कैपिंग है इसका मतलब क्या होता है जैसे आपका 5 लाख का पॉलिसी है आपका क्लेम आ गया किसी भी में कोविड में या किसी में भी आपका क्लेम आ गया 3 लाख का बट रूम रेंट आपको 8,000 था वो उसमें मिल नहीं रहा था फिर आपको रूम रेंट दूसरे में स्पेशल शूट या ऐसे में रखा तो पर डे रूम रेंट 8,000 था 2 लाख का खर्चा हुआ है आपने बोला कि ठीक है अभी 5 लाख का पॉलिसी है 2 लाख का है तो उसमें मिल जाना चाहिए लेकिन नहीं मिलेगा क्यों क्योंकि अलाउड था 5,000 तो रूम रेंट आपका है 8,000 तो उस हिसाब से परसेंटेज में पूरे 2 लाख में आपका कम से कम 30-40,000 कट जाएगा और आप जब पूछने जाओगे तो बोलेगा सर आपका पॉलिसी में ये चीज लिखा है तो सबसे पहला तो आपका पॉलिसी डॉक्यूमेंट कहाँ है वो देख लो क्योंकि आज भी अगर मैं किसी को पूछता हूँ ना तो उसके पास अपना पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं होता है और फिर उन लोग ढूंढते हैं फिर बोलेंगे अरे इस साल का तो पॉलिसी नहीं आया तो सबसे पहले एक काम करो कि अपना हेल्थ इंश्योरेंस का एक पॉलिसी बनाओ एक फोल्डर बनाओ उसके अंदर सब ऊपर स्टिक जैसे हम लोग स्टिक करते हैं कि 2021 का पॉलिसी ऐसा एक नोट लगा दो और उसमें पॉलिसी हैंडी रखो पॉलिसी का डॉक्यूमेंट योर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का डॉक्यूमेंट फाइल बनाओ एडेक्वेट हेल्थ कवर लो इसमें हम लोग बात करेंगे अभी रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड है कॉलेज फ्रेंड है उसकी डॉटर 21 ईयर की है राजीव सर के ऑफिस में काम करती थी सीए कर रही है उसको कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गया स्टमक में फिर उसका लार्ज इंटेस्टाइन ये सब मल्टीपल प्रॉब्लम हो गया और अभी लॉकडाउन में रात को उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और 6 जून को उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था और अभी क्या हुआ उसको सर्जरी हुआ सब हो गया इंश्योरेंस था 3 लाख का मेरे से लिया भी नहीं है बिकॉज उसका बिजनेस है तो उसने बोला ये आदमी मेरे को बिजनेस देता है तो पारस इससे ले लो क्या मैं बोला डेफिनेटली ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं
बट पॉलिसी था सिर्फ 3 लाख का, नो क्लेम बोनस था 50,000, 3.5 लाख। अभी खर्चा हो गया एक्चुअली 5,60,000, 2,20,000 उसने अपनी जेब से भरा। रिसेंट मंडे को उसका डिस्चार्ज हुआ है। राजीव जी ने भी काफी हेल्प किया, उन्होंने फार्मेसी में, और इसमें कनन सर ने भी राजीव सर को बोला था। तो ये सारा चीज हो गया। अभी जस्ट इमेजिन कि जब अगर कोई आदमी, घर में एक भी इंसान अगर बीमार है, तो वो ऑलरेडी है ना 10 प्रॉब्लम में रहता है। और हेल्थ इंश्योरेंस में रूम रेंट का प्रॉब्लम, क्लेम में प्रॉब्लम, कैशलेस का प्रॉब्लम, और पैसा अपने को जेब से जाएगा, तो ये उसके लिए 11वां प्रॉब्लम बन जाता है। तो हमको हमारा एडिक्वेट इंश्योरेंस लेना चाहिए। कभी भी बोलते हैं कि एडिक्वेट इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि अगर आपके फैमिली में 4 लोग हैं और ये कोविड-19 की बात करें तो इट्स इन्फेक्शियस, वो सबको हो सकता है। मॉडरेट रिस्क 3 to 4 लाख पर पर्सन, 4 लोग है तो इसमें ही आपका 12-15 लाख रुपया खर्चा हो सकता है। प्लस आपका 15 लाख का पॉलिसी है और कोविड में से एग्जाम्पल कुछ नहीं हुआ, सब लोग ठीक होके वापस आ गए, 15 लाख खर्चा था, वो 15 लाख इंश्योरेंस पॉलिसी से मिल गया। लेकिन पूरे साल में आपका रिकवर हो जाएगा 0। उसके बाद कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी देखो आप बीएमसी भी बोल रही है, आप न्यूज में भी देखोगे कि कोविड के अलावा बहुत सारे और भी डिजीज हो सकते हैं, डेंगू हो सकता है, ये हो सकता है। तो उन लोग फिर आपके पास अगर ये पूरा खबर खत्म हो गया तो आपके पास ये नहीं है। तो नॉर्मली हम लोग को ऐसा लगता है कि हस्बैंड वाइफ और 1 चाइल्ड अगर ऐसा फैमिली है तो नॉर्मली 15-20 लाख सम अश्योर्ड होना चाहिए। 2 अडल्ट 2 चाइल्ड ऐसा है तो अराउंड मुंबई या थाना में हम लोग रहते हैं तो कम से कम हमारे पास 20-30 लाख का सम अश्योर्ड होना चाहिए। वो आप चेक कर सकते हैं। एंड मोमेंट पे क्या क्या होता है और हमने ये सब किया है, तो आपका एडवाइजर का नंबर, नॉर्मली क्या होता है अभी है ना इंश्योरेंस पॉलिसी में एडवाइजर का, आपका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो या हेल्थ इंश्योरेंस, उसमें उसका नाम और नंबर लिख के आता है, वो आपके मोबाइल में सेव होना चाहिए। टीपीए का नंबर सेव होना चाहिए, नहीं तो एंड मोमेंट पे हम लोग ढूंढते बैठेंगे कि इसका टीपीए कौन था। अभी लॉकडाउन में सभी लोग टीपीए भी जो है वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो कभी फोन लगा नहीं लगा, सेकंड लाइन ऑफ कांटेक्ट कौन है, ये सब अपने को ध्यान में रखना चाहिए। नियर बाय कैशलेस हॉस्पिटल का लिस्ट सभी अभी ऑनलाइन हो गया है, लिंक भेज देते हैं, सब आप कहाँ एरिया में हो देख लो। बहुत सारे कंपनी ने, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने ऐप एक डेवलप किया है, वो ऐप आप आपने इसमें डाउनलोड कर लो और मोबाइल नंबर रजिस्टर एक बार कर लो तो आपका पूरा पॉलिसी आपके ऐप में दिखता है। इससे फायदा क्या होता है, जैसे एग्जांपल यू आर ट्रैवलिंग टू गुजरात, तो वहां पर आप लोकेशन ऑन करोगे ना तो आपको 2 किलोमीटर के रेडियस में, 5 किलोमीटर के रेडियस में कितने कैशलेस हॉस्पिटल हैं उसका लिस्ट आ जाता है। वहां पर ऑप्शन आ जाता है कि ये आपको अगर इसको कॉल करना है तो यहीं से क्लिक कर लो, पॉलिसी आपको इसके ईमेल पे भेजना है तो यहीं से भेज दो। तो ये सारी चीज आपको मालूम होना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट आपके फैमिली मेंबर को मालूम होनी चाहिए। बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि केवाईसी डिटेल्स, जैसे हमारा पैन कार्ड कॉपी, आधार कार्ड कॉपी, उसमें और पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मिसमैच हो जाता है। देखो जब हम लोग पॉलिसी लेते हैं ना, जो पॉलिसी पंच करते हैं वो भी इंसान है, उससे भी गलती हो सकती है, कभी प्रपोजल फॉर्म में भी हो सकती है। तो अभी मैं रिसेंट केस बताता हूँ, कोविड का हमने एक पॉलिसी किया, तो मराठी में एक सरनेम होता है राहुल, RAUL, और उसने लिख दिया राहुल, RAHUL। अभी ये आदमी का नाम है अमय राहुल, तो उसका अभी नाम दिख रहा है अमय राहुल, अभी ऐसा कोई नाम नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब चीज है ना, जब हम पॉलिसी का चेक देते हैं और हमारा पॉलिसी आता है तो एजेंट से आप बोलो कि मेरा पॉलिसी नहीं आया है और ये सारा डिटेल्स ये कर लो। इससे होता क्या है, अगर समझो नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम, जो अभी रिसेंटली हुआ, कैशलेस फैसिलिटी था, सब था, बट उसका केवाईसी का जो डिटेल था ना वो इसके साथ मैच नहीं हो रहा था। तो कम हॉस्पिटल ने क्या बोला कि सर ठीक है, आपका ये जो है हम ले लेते हैं, ये टेक्निकल मिस्टेक है, मैं भी समझती हूँ, कैशलेस नहीं होगा, आप पहले पैसे भर दो फिर उसके बाद होगा। जस्ट इमेजिन कि ऐसा कुछ हो गया और आज के डेट में 3-4-5 लाख रुपया हमको कहीं से लाना पड़ा, तो व्हाट इज द यूज। तो ये सब चीज हमारा छोटा छोटा चीज है, बट ये होना चाहिए। अच्छा, दूसरा कैशलेस फैसिलिटी आपने सुना होगा और इसका वर्ड भी ऐसा ही है, कैशलेस फैसिलिटी अवेलेबल, ऐसा लिखा होता है हॉस्पिटल में। अभी ये जो कैशलेस है ना वो फैसिलिटी है, इट्स नॉट योर राइट।
लीगल टर्म में कैशलेस फैसिलिटी हर एक कंपनी देती है, ये उनका मार्केटिंग टूल भी है, लोग बोलते भी हैं कि हमारा 5500 कैशलेस हॉस्पिटल्स हैं पूरे इंडिया में, ये सब बोलते हैं उन लोग, और ये इस पे ही मार्केटिंग है और इस पे ही लोग करते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया और कैशलेस नहीं होता है, तो आप ये टॉपिक पे ये वर्ड लेके उसके साथ फाइट नहीं कर सकते कि नहीं नहीं ये तो हमको मिलना ही चाहिए, नहीं मिलेगा। आपको पहले पैसा भरना पड़ेगा, फिर रीइंबर्समेंट के लिए जाना पड़ेगा। इसीलिए इमरजेंसी फंड होना चाहिए। हम लोग इतने साल से बोल रहे हैं इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड। 2008 में जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, तभी लोगों को इमरजेंसी फंड समझ में आया, उसके बाद वापस जैसा था वैसे हो गया। और आज भी लोगों को जब कुछ प्रॉब्लम होता है ना, तभी हमको समझता है कि ये इमरजेंसी फंड क्या होता है, क्या होता है। तो ये होना चाहिए। दूसरा, फैमिली का व्हाट्सएप एक ग्रुप आप बना सकते हो। ये मेरे क्लाइंट ने किया, जो मुझे उसका आइडिया अच्छा लगा। फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप मतलब आपका जो फैमिली है वो, फिर आपके जो कोई कजिन है या ऐसे है उनके, और उन्होंने ये सारा डिटेल, केवाईसी डिटेल या फिर अपना पॉलिसी का डिटेल ग्रुप में शेयर किया हुआ है। तो इससे होगा क्या, नॉर्मली आपको कहीं पॉलिसी ढूंढने को जाना नहीं पड़ेगा। और अगर समझो आपके घर में कोई भी एक जन बीमार है, तो आपका स्पाउस मतलब हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड, वो उसमें बिजी रहते हैं। बच्चे लोगों को समझेगा नहीं समझेगा, बच्चे छोटे हैं, तो क्या है कि ये सारा डिटेल अगर आपके कोई रिलेटिव के पास है तो वो वहां पे आपको हेल्प कर सकता है। दूसरा एक है गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव में मैंने बहुत सारे पॉलिसीज है, काफी लोगों के मैंने क्लाइंट के भी अगर जो हाँ बोलते हैं तो उसका डेटा मैंने उसमें सेव करके रखा है। अभी आजकल सभी के पास गूगल अकाउंट होता ही है, और हमारे स्मार्टफोन में गूगल में आप एक बार सिंक कर दो तो आपको गूगल ड्राइव भी एक्सेस करने को मिल जाता है। तो ये कुछ टिप्स है जो आप कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी एक बहुत कंफ्यूजन है, और ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना, टेक्निकल है, लेकिन ये आप है ना, इसमें बहुत सारे एजेंट लोग को भी नहीं पता होता है। और हमारे पास है ना, हमने पूरा रिसर्च किया है, और अभी हमारे एक ये अपना जो मीटिंग है उसमें हमारे एक फ्रेंड भी है, ही इज आल्सो वेरी गुड एडवाइजर, मेरे काफी अच्छे दोस्त है विनय समोटा, वो भी है। हमने इस पे है ना बहुत रिसर्च किया। फिर पहले तो किसी को पता नहीं था, ऑनेस्टली स्पीकिंग 3 साल पहले मुझे भी नहीं पता था। नॉर्मली क्या होता है, दो टाइप के प्लान होते हैं, एक होता है बेस प्लान और एक होता है सुपर टॉपअप प्लान। बेस प्लान क्या होता है कि नॉर्मल आपने 5 लाख का प्लान ले लिया है, अभी आपको इंश्योरेंस कवर बढ़ाना है, लेकिन आप बोलेंगे कि मैं इंश्योरेंस कवर बढ़ाऊंगा, उससे अच्छा आप मेरे को एक कुछ टॉपअप वाला प्लान होता है तो वो दे दो। इसका दो चीज होता है। ये प्लान कौन लेता है, नॉर्मली जो लोग कंपनी में काम करते हैं, अच्छी कंपनी में, और कंपनी की तरफ से उसको इंश्योरेंस होता है 3 लाख 5 लाख, तो वो क्या बोलते हैं कि हमारा तो कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस है, तो आप हमको टॉपअप दे दो। अभी ये अब हम लोग समझते हैं, इसको सुपर टॉपअप बोलते हैं। अभी इसमें दो वेरिएंट है, एक है टॉपअप और एक है सुपर टॉपअप। टॉपअप का मतलब ये होता है कि बेस प्लान आपका 5 लाख का है और आपने 20 लाख का सुपर टॉपअप टॉपअप प्लान ले लिया है। अगर क्लेम हुआ, फिर वो इंडिविजुअल हो या फ्लोटर पॉलिसी हो, अगर क्लेम हुआ तो फर्स्ट 5 लाख का कवर एक कंपनी देगी, उसके ऊपर अगर क्लेम हुआ तो बाकी का 20 लाख तक दूसरी कंपनी देगी। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है। और सब पहले टॉपअप का हम लोग डेफिनेशन ले लेते हैं। टॉपअप मतलब पूरे साल में सिर्फ एक ही बार, फिर से बोलता हूँ, 5 लाख का बेस प्लान है बजाज एलियांज से, और आपका सुपर टॉपअप प्लान है 20 लाख का, जहां पर मैंने स्क्रीन पे आपको दिखेगा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का, ठीक है। 5 लाख का कवर अगर क्लेम हो गया तो बजाज एलियांज देगा, उसके ऊपर 20 लाख का हो गया तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड देगा। लेकिन टॉपअप का मतलब होता है सिर्फ एक बार, सुपर टॉपअप का मतलब होता है कितनी भी बार। तो नॉर्मली लोग टॉपअप नहीं लेते हैं, सुपर टॉपअप ही लेते हैं। अभी ये एक एग्जांपल है, आ, मैंने दिया है, और ये टेक्निकल है, समझने का कोशिश करना। और इसका अगर नहीं समझे तो बॉटम लाइन क्या है एक सिंगल वर्ड में, वो भी मैं समझा दूंगा। ये एक एग्जांपल लिया है कि एक आदमी का एक पॉलिसी है, इसका स्टार्टिंग डेट है 1 जनवरी 2020 और उसका एंड डेट है 31 दिसंबर 2020।
अभी कोरोना का ये हो गया तो उसने बोला मेरे को 20 लाख का सुपर टॉपअप प्लान दे दो। तो उसने दूसरा सुपर टॉपअप प्लान लिया 1 जून 2020 को, और उसका एंड डेट है 30 मई 2021। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जो है, जो टॉपअप प्लान है वो बहुत सस्ता मिलता है। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड क्या बोलता है कि ठीक है, आपका अगर 5 लाख से ऊपर आ गया क्लेम तो हमारे पास आइए, उसका हमको एक प्रूफ दे दीजिए कि ये 5 लाख खत्म हो गया है, उसके ऊपर का क्लेम हम दे देंगे। लेकिन इसमें बहुत कंफ्यूजन है। कैसे? अगर आईसीआईसी के पास आप आते हो तो आईसीआईसी क्या बोलता है कि आपको मैं 1 जून के पहले तो जानता नहीं था, आपने 1 जून से हमसे पॉलिसी ली है, तो आपका जो सम अश्योर्ड है ना, जो बेसिक सम अश्योर्ड 5 लाख जो खत्म होना चाहिए, वो हमारे पीरियड में खत्म होना चाहिए 1 जून से लेके 31 मई 2021। क्यों? आप बोलेंगे क्यों, हमारा तो बजाज से पॉलिसी है, लेकिन वो तो उसका डेट अलग है। अभी सपोज मैंने एग्जांपल भी लिया है कि ये आदमी का क्लेम 1 मार्च 21 को हो गया और क्लेम का अमाउंट था 10 लाख। ठीक है, तो ये 10 लाख था तो 5 लाख बजाज देगा और ऊपर का 5 लाख है वो आईसीआईसीआई देगा। लेकिन आईसीआईसीआई क्या बोलेगा कि आप हमारे पास आए ना, ये 1 जून से लेके इसमें आपका ये होना चाहिए, बट 30 मई को आपका पॉलिसी खत्म हो गया, आपका क्लेम आया है, सॉरी ये 1 मार्च नहीं है, 1 जून है, 1 जुलाई है, सॉरी करेक्शन है इसमें, उसके बाद आया तो ये हम आपको क्लेम नहीं देंगे। बोलने का मतलब यही है टेक्निकल पूरा, आपका जो बेस प्लान है ना, सुपर टॉपअप का डेट दोनों सेम होना चाहिए। बेस प्लान आपका है जुलाई महीने में और आपने ले लिया है अभी, अगर ये दोनों का डेट सेम नहीं है, टॉप अप प्लान का पैसा नहीं मिलेगा। और ये हमने कितने कंपनी से कंफर्म किया है, उसके अंडरराइटर से मेल करके, मेल पे कंफर्म किया है और उन्होंने बोला है कि यस यू आर राइट, ये नहीं मिलेगा। बहुत सारे एजेंट को भी पता नहीं होता है, और आपको नहीं है तो आप पर्सनली मुझे भी बात कर सकते हो, अपने एजेंट को बात कर सकते हो। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, बजाज, स्टार हेल्थ, एचडीएफसी अर्गो, रेलीगेयर एंड न्यू इंडिया, इतने कंपनी ने बोला है कि यस यू आर राइट, हमारे पास जब आप आए तभी आपका टॉपअप वो खत्म होना चाहिए, तभी ही आपको पॉलिसी का प्रीमियम आगे का टॉपअप मिलेगा। तो ये टेक्निकल वर्ड है, जो कुछ भी लेते हो ना सोच समझ के लेना। आपको नॉर्मली किसी को समझता नहीं है आपका, इसमें ये नहीं, हमको भी नहीं समझ रहा था 3-4 साल पहले, लेकिन जब टॉपअप प्लान ज्यादा बिकने लगा ना, उसके बाद हमने ये सोचा और फिर हमको ये पता चला। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लान है। लोगों को लगता है कि नहीं हमारा तो 5 लाख है, हमने टॉपअप भी ले लिया, हम कवर है, लेकिन ऐसा हो गया ना तो एजेंट भी फिर ऊपर हाथ कर देगा कि हाँ सर ऐसा तो था, तो तभी क्यों नहीं बताया। तो बहुत सारे केस में एजेंट को भी पता नहीं होता है। ओके नेक्स्ट। अभी ये कुछ एड ऑन है, जो जैसे मैंने बताया कि आईआरडीए ने बोला है कि 15 जुलाई से वर्डिंग्स चेंज होगा, लेकिन अभी ये है ऑलरेडी, ये प्रोडक्ट है, इसको बेनिफिट प्रोडक्ट बता बोलते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपको बहुत सारे अनक्लेम्ड खर्चे होते हैं, उसके लिए डेली कैश प्रोडक्ट है, बहुत सारे कंपनी के पास है, जिसमें 500 टू 1000 सॉरी 10,000 पर डे भी मिलता है। एग्जाम्पल, 5 लाख का आपका पॉलिसी है और आपने डेली कैश का बेनिफिट 10,000 पर डे लिया है, हमारे ग्रुप में काफी लोगों को हमने दिया है ये, तो अगर हॉस्पिटलाइजेशन हो गया तो हॉस्पिटल का पूरा खर्चा आपको बेस पॉलिसी से मिलेगा, प्लस आपने अगर 10,000 पर डे का प्रीमियम भरा है और ये अलग से एड ऑन लिया है तो 10,000 पर डे आपको अलग से मिलेगा। से 14 डे का अभी कोविड के लिए आपका हॉस्पिटलाइजेशन हो गया किसी का और उसने ये ऑप्शन लिया है, तो 1,14,000 10,000 इंटू 14, 1,40,000 ओवर एंड अबाउ उसको मिलेगा। तो आप बोल देंगे कि पहले तो आपने बताया था कि इंडेमनिटी प्रोडक्ट होता है, इसमें अपने को कुछ कमाने का नहीं रहता है, जितना खर्चा हुआ उतना ही। हाँ, लेकिन ये आईआरडीए ने अलाउ किया है, ये आप ले सकते हो। जैसे मैंने बताया ना, बहुत सारे खर्चे अनक्लेम्ड होता है, जो बिजनेसमैन है और वो अगर काउंटर पे खड़ा रहता है और उसका स्किल्ड वर्क है, अगर वो अपने ऑफिस में नहीं जाएगा तो वो बिजनेस लॉस का खर्चा कहाँ से निकलेगा। तो वो ऐसा कोई इंश्योरेंस नहीं है, बट वो एड ऑन में ऐसे ले सकते हो। क्रिटिकल इलनेस प्लान होता है, क्रिटिकल इलनेस मतलब 34, किसी में 32 है, किसी में 34 है, किसी में 30 है, वैसे एक अलग से एड ऑन होता है। अगर आपने ये प्लान ले लिया
और उसका अलग से प्रीमियम भर लिया, तो उसमें कैंसर, हार्ट का प्रॉब्लम, किडनी फेलियर, मेजर जो 34 होते हैं वो सब कवर है। तो से एग्जांपल कि आपका बेस प्लान है 5 लाख का और क्रिटिकल इलनेस का आपने 10 लाख अलग से लिया हुआ है, और समझो किडनी फेलियर या ऐसा कुछ हो जाता है, तो वो ट्रीटमेंट जितना हुआ वो तो आपको बेस प्लान से मिल जाएगा मेडिक्लेम का, प्लस ये ओवर एंड अबाउ इसमें मिलता है। इसमें वर्डिंग्स में ऐसा लिखा है कि जब डायग्नोज होता है तो आपको 50% दे देंगे सम अश्योर्ड का। से 10 लाख का हमने एग्जांपल लिया है तो उसमें 5 लाख तुरंत मिल जाता है, बाकी का 5 लाख आपका सर्जरी होगा तो ही मिलता है। हर एक पॉलिसी का वर्डिंग अलग अलग होता है, कोई 100% भी दे देते हैं। कैंसर केयर ये अलग एक प्लान है, कैंसर केयर भी आप ले सकते हो। मैं सिर्फ बताता हूँ कि सिर्फ ये कैंसर के लिए होता है, और किसी भी टाइप का अगर कैंसर हो गया तो इसमें पैसा मिलता है। मैं सिर्फ आपको एक प्लान का सेलिंग नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको बताता हूँ कि लोगों को मालूम नहीं है और भी कितना सस्ता है। एज 35 एज में 20 लाख का अगर सम एश्योर्ड कोई ले लेगा, उसको प्रीमियम सिर्फ साल का 5,000 रुपया आएगा विथ जीएसटी। और ये वुमेन्स का बता रहा हूँ, वुमेन्स आपको पता होगा वुमेन्स इज मोर प्रोन टू कैंसर। तो ये मेल और वुमेन का अलग अलग, फीमेल का अलग अलग प्रीमियम है, मेल का कम है, फीमेल का ज्यादा है। तो ये मैंने फीमेल का आपको बताया 20 लाख सम अश्योर्ड, एक साल का 5,000 प्रीमियम। तो ये मिल सकता है, हमको मालूम नहीं था। नेक्स्ट स्लाइड मंगेश जी, नेक्स्ट स्लाइड। अभी ये हो गया हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अगर हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कुछ आपका डाउट है, क्वेरी है, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अदरवाइज हम लोग लाइफ इंश्योरेंस के बारे में आगे चलते हैं। आई विल वेट फॉर हाफ अ मिनट। अगर किसी को लिखना है, कुछ है, रेज हैंड कर सकते हैं या चैट में लिख सकते हैं, कोई उनको नहीं समझा या कुछ है तो। अरे जी, हाँ मेरे 2-3 क्वेश्चंस है कोविड-19 इंश्योरेंस के लिए। जी बताइए। आपका जो सेशन का इनवाइट था वो हमने हमारा एम्प्लॉइज का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर किया था, तो उन्होंने मुझे कुछ 4 क्वेश्चन लिस्ट डाउन करके दिए हुए हैं। परफेक्ट। उसमें से सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि कोविड-19 टेस्ट का जो एक्सपेंसेस है, बहुत सारे बार 2-3 बार हमें करना पड़ता है, तो वो कोविड इंश्योरेंस का जो पॉलिसी है उसमें कवर्ड होगा कि नहीं? ये फर्स्ट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आई थिंक सभी लोगों को एक क्वेश्चन समझा। मंगेश जी पूछ रहे हैं कि अगर कोविड का आप इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें कोविड का जो टेस्ट होता है, क्योंकि पॉजिटिव तो तभी होगा ना टेस्ट करने के बाद, उसका पैसा मिलता है कि नहीं। तो अभी मैं आपको पॉलिसी का वर्डिंग बताता हूँ। स्पेशल कोविड के लिए अलग से पॉलिसी एक लॉन्च किया था, बहुत सारे कंपनी ने किया था। उसमें कैसा था कि कोविड का पॉजिटिव टेस्ट आता है। से एग्जांपल लेते हैं, चलो एक आदमी को बुखार हो गया, वो डॉक्टर के पास गया, उसने बोला डॉक्टर साहब बुखार है। कोविड का सिम्टम्स क्या है? बुखार आना, सिर दुखना, सांस फूलना, जल्दी से थक जाना, ड्राई कफ होना, खांसी आना, ये उसका सिम्टम्स है। समझो इसमें से किसी को ऐसा कुछ सिम्टम्स है, वो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर सबसे पहला कोविड टेस्ट नहीं करता है, वो दूसरा टेस्ट करता है, उसको दवा देता है। उसमें अगर वो ठीक नहीं हुआ तो उसको ब्लड रिपोर्ट करने को बोलेगा। उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ और सिम्टम्स ऐसे ही है या बढ़ रहे हैं, फिर वो कोविड टेस्ट करेगा। तो कोविड टेस्ट जब तक किया और पॉजिटिव आया, तो उसके बाद हॉस्पिटल का पूरा खर्चा जो है वो मिलेगा अप टू सम अश्योर्ड, नंबर 1। नंबर 2, उसके 30 डेज के पहले आपने जो भी खर्चा किया है रिलेटेड टू दिस डिसीज, वो भी मिलेगा। और घर पे आने के बाद 60 डेज तक जो भी खर्चा करोगे रिलेटेड टू दिस डिसीज, वो भी मिलेगा। मतलब क्या है कि अगर ये आदमी का हमने एग्जांपल लिया, वो कोविड पॉजिटिव आने के पहले उसका 5-6 हजार खर्चा हो चुका है ऑलरेडी। कैसे? डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर का कंसल्टेशन 500 रुपीज, मेडिसिन दिया उसका 200-400 रुपया, उसके बाद ब्लड टेस्ट किया उसका कुछ पैसा, और कोविड टेस्ट का 4,500 रुपया होता है। तो वो कोविड पॉजिटिव आया उसके पहले ऑलरेडी ये खर्चा कर चुका है। अगर पॉजिटिव आ गया तो 30 डेज के पहले जो भी खर्चा किया है सब मिलेगा। लेकिन अगर नेगेटिव आ गया और तब तक 5-6 हजार खर्चा कर दिया है और हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होना है, तो पैसा नहीं मिलेगा। मंगेश जी, आई एम क्लियर? यस सर। जी सर। दूसरा क्वेश्चन है क्वारंटाइन एक्सपेंसेस के बारे में।
नॉर्मली अगर पेशेंट पॉजिटिव पाया जाता है, लेकिन अगर वो फिजिकली फिट है, अगर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है, तो दो तरीके के क्वारंटाइन फैसिलिटी है, एक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन और एक होम क्वारंटाइन। अगर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में बहुत सारे होटल्स पर डे बेसिस पे कुछ चार्ज कर रहे हैं, तो वो जो एक्सपेंसेस है क्वारंटाइन के, वो पॉलिसी में कवर होंगे कि नहीं? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। और आईसीआईसीआई हमने जैसे आगे बात किया ना, आईसीआईसीआई में होम क्वारंटाइन ऑलरेडी अलाउड है। उन्होंने अभी ही होम क्वारंटाइन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने अलाउ कर दिया है। उन्होंने कोटिया करके एक कंपनी है, उसके साथ टाई अप किया है। उसमें एक रूल है, अगर आपको डॉक्टर बोलता है कि आपको कोविड पॉजिटिव है और आपका ट्रीटमेंट 72 आवर्स से ज्यादा चलने वाला है, 3 दिन से ज्यादा, तो आपको होम क्वारंटाइन का फैसिलिटी मिलेगा। और आईसीआईसीआई का पॉलिसी है तो वो डायरेक्ट उसका कैशलेस कर देंगे। नंबर 1, आपको कुछ भरना नहीं है, प्लस वो कंपनी के साथ टाई अप करके आपका होम देखेंगे। अगर समझो जैसे मेरे इसमें तो हम लोग सिर्फ 2 ही जन है, तो वो आपको बोलेंगे कि ठीक है आपके पास इनफ स्पेस है तो हम आपके घर में ही होम क्वारंटाइन कर देते हैं। अभी दूसरा पार्ट इसका क्वेश्चन का, क्या हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशनल को मिलेगा कि नहीं, जहां पर आप होटल में पर डे 3000 5000 मिलेगा, सब्जेक्ट टू आप जहां पर जो एरिया में हो वहां पर कोविड का आपको बेड नहीं मिल रहा है हॉस्पिटल में, और उन्होंने गवर्नमेंट ने बीएमसी ने या वहां पर उन्होंने बोला है कि ये हॉस्पिटल है, सॉरी होटल है, इसमें आप ये कर दो। अगर वो हो गया तो उसमें भी मिलेगा, और उसमें भी कैशलेस अप्रूवल मिल जाता है। तो इसमें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, वो भी कवर्ड होगा क्या? सर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नहीं होगा, सिर्फ इसका ही होगा। ओके, अकोमोडेशन जो भी स्टे होगा वही हाँ कवर्ड होगा। हाँ हाँ। अभी मैंने आपको जो बताया ना, ये जो आपका एम्प्लॉय का जो कोविड का है ना, उसके अंदर देखो ट्रैवलिंग में अगर एम्बुलेंस है तो उसमें पर 5000 मैक्सिमम एम्बुलेंस लिखा है, उसमें वर्डिंग्स में लिखा है, ओके। अगर एम्बुलेंस है तो। बाकी आपको ऐसा है तो नहीं मिलेगा। इसीलिए आईआरडीए हमने आगे जो बात किया, गाइडलाइन ला रही है और सबको बोल रही है कि कोविड में जैसे आपने बोला ट्रैवलिंग, अभी समझो अभी तो थोड़ा सा लॉकडाउन खुल गया है, इसके पहले आपको अगर यहाँ से बॉम्बे जाना था तो नहीं जा सकते थे यार, और जाना भी है तो बहुत खर्चा होता था। बहुत राइट। एक्सपेंसेस था। बट इन्होंने क्या बोला है कि 15 तारीख के बाद तुम ये प्लान लाओ, ऑप्शन है, लेना नहीं लेना अपना है। और करंट इसमें जो है उसमें भी आप ले सकते हो। जो से जैसे आईसीआईसीआई का एक प्रोडक्ट है, अगर इंडिविजुअल है ना तो उसमें बाय डिफॉल्ट ये आता ही है सम एश्योर्ड में, और उसका अलग से प्लान है उसमें भी आता है। तो आपका क्वेश्चन का आंसर है कि कोविड का इसमें ट्रैवलिंग का नहीं मिलेगा। कोविड में अच्छा जो मैंने आपको बताया 30 प्री और 60 पोस्ट वो भी मिलता है, वो रिलेटेड टू डिजीज मिलता है। से एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी ये तो कोविड में ऐसा नहीं होता है लेकिन एग्जांपल बता रहा हूँ कि समझो किसी को हीमोग्लोबिन कम हो गया, उसको ब्लड चढ़ाया और ये सब चढ़ाया, उसका नॉर्मल लेवल पे आके डॉक्टर बोल देता है कि ठीक है अभी घर पे जाओ, ये टॉनिक है ये खाना, और बस आप बीट खाओ, ये सब खाओ, आपका हीमोग्लोबिन ठीक हो जाएगा। तो जो टॉनिक है ना, वो आप नहीं भी खाओगे ना तो ये हो जाता है। लेकिन कभी कभी कोई कंपनी बोलता है कि नहीं ये एडिशनल है, इसका पैसा नहीं देंगे, तो वो टॉनिक का एक जो 50 100 150 रुपए का होता है वो नहीं मिलेगा। मल्टीपल जो विटामिन की गोली होती है वो नहीं मिलेगी, उसका पैसा नहीं मिलता है। फिर अभी जो एक कोविड में है तो ऑक्सीमीटर ये वो नहीं मिलेगा रिलेटेड टू दिस डिसीज। आपने ऑक्सीमीटर ले लिया, उसका 2-3 हजार रुपया हो गया तो वो पैसा नहीं मिलेगा। इसी संदर्भ में लास्ट क्वेश्चन है कि जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, हॉस्पिटल से रिकवरी होने के बाद अगर टेलीमेडिसिन कंसेप्ट यूज करके कुछ एक्सपेंसेस होते हैं उसके, आजकल लॉकडाउन में टेलीमेडिसिन मतलब वीडियो कॉल पे डॉक्टर अवेलेबल है, तो वो एक्सपेंसेस कवर्ड होंगे कि वो पॉलिसी में? कोविड इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ। वेरी गुड क्वेश्चन, और आपका चारों चार क्वेश्चन बहुत ही एकदम जेन्यून, और बोलते हैं ना कि यही हो रहा है, लोगों को यही कंफ्यूजन है, तो बाकी के ग्रुप में भी ये काफी अच्छा उनका ये हो जाएगा। टेलीमेडिसिन अलाउड है, आईआरडीए का गाइडलाइन है सभी इंश्योरेंस कंपनीज को, गाइडलाइन है, मतलब उनको सभी को बोल दिया है कि ये करना ही है। आईसीआईसीआई का जो बात कर रहा हूँ उसमें ऐप है, उसने क्या बोला कि जो भी आपका टेलीमेडिसिन, उसमें 2 टेली फोन फ्री है, टेली डॉक्टर का कंसल्टेशन, टेली कंसल्टेशन फ्री है, और डॉक्टर ने बोल दिया तो वो आप डायरेक्ट ले लो, उसका फोटो निकाल दो और अपलोड कर दो, टेलीमेडिसिन अलाउड है।
एब्सोल्युटली अलाउड है। और ये Thank आप you. 1 mg और इसमें किसमें भी दे सकते हैं। टेली का जो है ना, आपने जब जैसे बताया टेली मेडिसिन, उसका फोटो निकाल के 1 mg में भी दे दोगे ना, फार्म इजी है, उसमें ऑनलाइन है, उसमें भी मिलता है। Thank you. और Any कोई other क्वेश्चन है? participant, yeah, have any question on specifically COVID insurance, COVID-19 insurance? पारस, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन एक और आया है इसी रिलेटेड। हाँ, होटल स्टे में फूड चार्जेस भी मिलेंगे क्या? किसमें वापस रिपीट करो प्लीज। अगर होटल में स्टे कर रहा है हाँ, तो उसके अंदर में फूड चार्जेस कवर होते हैं क्या? देखो अभी है ना होटल में, अभी मैं आपको बताता हूँ, मेरे जो जीजा जी हैं वो रिक पे काम करते हैं, उसको पॉजिटिव अभी कुछ नहीं था, ओएनजीसी उनका क्लाइंट है, तो वो अभी गए ना, तो उसमें जो उनके क्लाइंट ने ही, मतलब ओएनजीसी ने ही उनको क्वारंटाइन किया था 6 दिन, फिर सभी का टेस्ट निकाला, फिर उनको चॉपर से भेज दिया, ऐसा है। तो उसमें जो वो पैकेज देते हैं ना होटल वाले लोग, उसमें फूड इंक्लूड होता है, लेकिन वो वहां पर नहीं बनाते हैं, फूड का पैकेट दे देते हैं। तो अगर वो चार्जेस में पैकेज में जैसे 3,000 पर डे वो है, या 5,000 में आजकल इन लोग इसमें साथ में ही देते हैं, तो वो उसमें कवर हो जाएगा। लेकिन आप अगर अलग से ऑर्डर करोगे कि हम यहाँ पर थे, यहाँ का फूड मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अलग से ऑर्डर कर रहा हूँ, और उसका दिन का 500 रुपया हो रहा है, और 15 दिन हो गया, तो मेरे को आप 7,500 रुपया दो, तो नहीं मिलेगा। ओके। Paras, I Paraji, have a we can, question. yeah. हाँ हाँ, बोलिए सर। Sorry, Mangesh. Paras, I have a question. जी जी Now, सर। supposing these five-star hotels and other hotels which are offering these COVID services, I guess if I'm not wrong, उसके bills हम लोग को hotel में भरने नहीं होते. We have to hospital will charge those bills basically, I guess. यस यस यस, हॉस्पिटल चार्ज का ये करते हैं उसमें। परफेक्ट है, आपने जो बोला एकदम परफेक्ट। Okay. तो आपका क्वेश्चन क्या था, मैं समझा नहीं। No. Basically, this is again getting covered by the hospital bills, within the hospital bills only. So वो उसमें मिल जाएगा इंश्योरेंस में। यस, चलो आपके ही क्वेश्चन में आगे का हम लोग और चीज बता देते हैं। एक आदमी का पॉलिसी है और उसमें उसको कोविड हो गया, ठीक है, और वो हॉस्पिटलाइज हो गया, और उसमें कैशलेस था। तो कैशलेस में क्या होता है कि उनका जो पॉलिसी है और जो कार्ड होता है ना, वो उनको देना पड़ता है। वहाँ का जो टीपीए डिपार्टमेंट होता है वो कंपनी को कांटेक्ट करता है कि आपका ये पर्सन सो एंड सो, इसका कार्ड नंबर ये है, ये हमारे पास ऐसे आया है और उसका ये है, तो आप हमको सैंक्शन भेजो। तो वो उनको पार्ट सैंक्शन भेजते हैं। जब भी वो समझो से एग्जांपल 5 लाख का पॉलिसी है, तो उनको 50,000 का सैंक्शन भेजेंगे। उसके बाद 50,000 खत्म होता है ना, तो हॉस्पिटल उसको पूरा लिस्ट बना के देती है। ये सब मेल पे होता है और स्टैंडर्ड प्रोसेस है, इसमें आपको और हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मैं बताता हूँ कि प्रोसेस कैसा होता है। फिर वो बोलता है कि ये डेट को ये पेशेंट आया था और हमने ये ट्रीटमेंट किया, ये आपने जो 50,000 दिया था वो खत्म हो गया, और दो। तो फिर वो और देते हैं। और जब फाइनली 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, ये स्टैंडर्ड है, कोविड के नहीं सभी के लिए, जब वो डिस्चार्ज होंगे ना, तब भी फाइनल बिल भेजते हैं कि ये फाइनल बिल है, उसका वहां पर उसका ये आ जाता है कंफर्मेशन के ओके, हम आपको ये सैंक्शन करते हैं। उसके बाद हमको वो डिस्चार्ज देते हैं। अभी फाइनल बिल समझो आया 2 लाख रुपया। अभी वो कंपनी, मतलब इंश्योरेंस कंपनी है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, और हॉस्पिटल है फोर्टिस, वो उसका और उसका लुकआउट है, वो उसको दे देगा, अपने को उसमें कुछ नहीं करना। अपने को सैंक्शन डिस्चार्ज मिल गया, तो अपने को डिस्चार्ज ले लेना। बराबर है नील जी, बराबर है? या करेक्ट पारस, बराबर है, थैंक्स। हाँ, तो और किसी को सवाल है? नहीं तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। You can continue with your PPT presentation. ठीक है, तो अभी लाइफ इंश्योरेंस में जाते हैं। उसमें क्या चेंजेस आया है? एटीसी का जो बेनिफिट का एक्सटेंशन है, मतलब 31 मार्च के पहले हमको जो एटीसी में इन्वेस्टमेंट करना होता है, वो गवर्नमेंट ने बोला वो हम एक्सटेंड करके 30 जून तक लेके जा रहे हैं। अभी इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था कि मेरा जो इंश्योरेंस का प्रीमियम जो भरने का है वो भी हो जाएगा क्या? नहीं, वो नहीं होएगा। उसमें गवर्नमेंट ने बताया था 17 अप्रैल या ऐसा कुछ डेट दिया था कि जो मार्च में फर्स्ट लॉकडाउन में जो हुआ था ना, उसमें गाइडलाइन दिया था कि यहाँ तक आपका हो जाएगा। टर्म इंश्योरेंस में भी उन्होंने बताया था कि यस, एलआईसी ने हमको स्पेशली ईमेल डाल के बोला था कि आपका जो टर्म इंश्योरेंस है और ये इसमें आ रहा है, तो हम आपको एडिशनल ग्रेस पीरियड दे देते हैं, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में 15 दिन का ग्रेस पीरियड होता है और नॉर्मल प्लान होता है उसमें 30 डेज का ग्रेस पीरियड होता है विथ प्रॉफिट प्लान। यूलिप में कोई ग्रेस पीरियड नहीं होता है। यूलिप का फुल फॉर्म होता है
यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान या प्रोडक्ट। तो अभी इसमें ये हो गया। दूसरा, अगर आपको प्रीमियम भरना है टर्म इंश्योरेंस का और गवर्नमेंट ने जो 15 डे बोला था और उसके बाद आपने नहीं भरा, इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा। अगर डेथ हो गया पैसा नहीं मिलेगा। टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम आपका जो था वो गवर्नमेंट ने जो भी IRDA में दिया था वो खत्म हो गया है। ठीक है, विथ पारस, प्रॉफिट। हाँ, आई हैव अ क्वेश्चन। ये जो आपने अभी बताया कि खाली टाइम पीरियड इज ओनली लिमिटेड, बट आई थिंक सो देयर इज अ कंफ्यूजन ऑन दिस थिंग, क्योंकि काफी जगह इवन प्रोफेशनल ग्रुप्स में या इवन अदर प्रेजेंटेशन में सब जी सर। लोगों का समझ है कि वॉट एवर यू हैव पेड टिल 30th जून आप 31st मार्च के फाइनेंशियल्स में या केस में क्लेम कर पाओगे। तो व्हाट इज द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ये, क्योंकि ये सब जगह आई मीन जो भी कहीं वेबिनार्स हुए थे पहले या प्रोफेशनल ग्रुप्स में भी, तो कि ATC का बेनिफिट इज अवेलेबल टिल 30th जून। तो आप जरा इसको वापस एक बार क्लैरिफाई करेंगे तो ज्यादा उचित रहेगा। जी जी सर। राजीव जी का सवाल है कि हम लोग जो टैक्स के लिए टैक्स सेविंग के इंस्ट्रूमेंट है ATC, इसमें कितने प्रोडक्ट आते हैं? PPF आता है, फिर आपका LIC का पॉलिसी का प्रीमियम आता है, फिर आपका जो हाउसिंग लोन का है उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पार्ट होता है, उसमें से एक पार्ट इसके अंदर आता है। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट है। ELSS, म्यूचुअल फंड में ELSS स्कीम होती है, वो आता है। तो IRDA ने क्या बोला कि अगर आपको 31 मार्च तक बेनिफिट लेने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करने का था, जो अभी आप लॉकडाउन के वजह नहीं कर सकते हो, तो वो 30 जून तक भी अगर आपने किया तो हम ये फाइनेंशियल ईयर में, कौन सा फाइनेंशियल ईयर में, 1920, देखो दो चीज होता है, एक फाइनेंशियल ईयर और एक असेसमेंट ईयर। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर 1920 में 30 जून तक आपने 1.5 लाख रुपए आपका इन्वेस्ट करने का बाकी है, वो अगर कर दिया तो आपको 80 का बेनिफिट मिलेगा। सर बराबर है। और इसका सर्क्यूलर है, किसी को चाहिए तो IRDA का सर्क्यूलर मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। सर, am I answering your question? Yes, Paras, what has happened is there was a lot of confusion. लोगों को ये समझ था कि 30 तारीख तक इवन इंश्योरेंस का भी आप क्लेम कर पाओगे, बट आई मीन दिस इज आई मीन क्लैरिफिकेशन व्हिच आई थिंक सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट अवेयर। तो आप सर्कुलर शेयर मेरे करेंगे पास तो... मैंने इतना जितना लिखा है ना वो मैंने पर्सनली वेरीफाई किया है, या फिर उसका मेरे पास कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, IRDA का सर्क्यूलर है। मैंने ऐसे ही कुछ नहीं लिखा। ये सब नहीं, चीज का तो आप अगर कोई आप पूछेगा शेयर ना, करेंगे ना तो सभी लोगों को ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो भी मिसकंसेप्शन है वो क्लियर हो जाएगा ये विषय में। शेयर कर देंगे। राम के पास है ना सभी का ईमेल ID है, उसको जो सर्क्यूलर है ना वो शेयर कर देंगे। Yes, let him share all participants, so it will be to the benefit of all. Thank you, Paras. अच्छा, अभी इसके अंदर है ना और एक चीज है, विथ प्रॉफिट प्लान। मतलब नॉर्मली LIC के जो लोग प्लान लेते थे, LIC में ये है बहुत अच्छा, ये बेनिफिट है। बहुत सारे, शायद किसी को पता होगा कि नहीं पता नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज आपका LIC का पॉलिसी है, दूसरे प्राइवेट इंश्योरेंस में ये है कि नहीं आई डोंट नो। HDFC, ICICI और बिरला में ये नहीं है, ये मेरे को मालूम है, बाकी प्लान मेरे को नहीं पता। LIC की बात करते हैं, किसे आपका एक पॉलिसी है विथ प्रॉफिट प्लान, ठीक है, उसको आपका पेमेंट करके, मतलब स्टार्टिंग डेट से 5 साल कंप्लीट हो चुका है और आपका एक भी प्रीमियम अनपेड नहीं है, फिर 5 ईयर का प्रीमियम आपने पूरा भर दिया है। इंश्योरेंस में ना एडवांस प्रीमियम होता है, मतलब पहले आप पैसा भर दो, उसके बाद आपका रिस्कवर स्टार्ट होगा। इट्स जस्ट लाइक अ प्रीपेड। क्यों? क्योंकि उनको खर्चा है ना। आज आप इंश्योरेंस प्लान लेके जाते हो और कल आपको कुछ हो गया तो उसमें लिखा हुआ है कि आपको नीचे जाके भी कुछ हो गया तो पैसा मिलेगा, तो उसका खर्चा तो चालू हो गया अगर पॉलिसी नंबर पंच हो गया तो इसमें एक बहुत ही अच्छा चीज है जिसको क्लेम कंसेशन पीरियड बोलते हैं। अभी इसमें क्या है कि अगर आपका 5 साल हो गया है, आपका सही एग्जाम्पल के साथ बताते हैं कि 5 लाख का पॉलिसी है, उसका प्रीमियम था 25,000 रुपया, आपका प्रीमियम भर के 5 साल हो गया है, ठीक है। अभी आपका ड्यू था 31 मार्च 2020 को,
जिसको ऑलरेडी 3 महीना हो चुका है। सपोज अभी आपके पास पैसा ही नहीं है, आप भर ही नहीं सकते हो, गवर्नमेंट ने जो बोल दिया वो सब ठीक है, लेकिन पैसा नहीं है, क्या करें? तो इसमें एक ऑप्शन है और ये इनबिल्ट है कि क्लेम कंसेशन। अगर आपका 5 साल हो चुका है और आपका पॉलिसी का प्रीमियम अनपेड है, कब तक? 6 मंथ तक, जो ड्यू था उसके 6 मंथ तक। और अगर डेथ हो गया, आदमी को पूरा पैसा मिलेगा, पूरा पैसा, 100% पूरा पैसा मिलेगा। फिर वो पॉलिसी 5 लाख का है, 1 करोड़ का है, कितने का भी है। तो ये बहुत ही अच्छा एक उसके अंदर इनबिल्ट ऑप्शन है। यूलिप क्या होता है? यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। इसके अंदर नॉर्मली 30 डेज का वेटिंग पीरियड होता है, बट वो यूनिट पे होता है ना, तो मार्केट अगर आपने वो ले लिया और मार्केट अप हो गया तो कम यूनिट मिलेंगे। तो यूलिप में जब भी आपका प्रीमियम ड्यू है भर दो, नहीं तो उसमें कुछ होता नहीं है। 5 साल के ऊपर भी अगर हो गया है तो आप उसमें से ही पार्शियल विड्रॉल करके उसमें ही वापस आप भर सकते हो। तो क्या होता है इसमें? यू हैव टू गिव अ रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट देना पड़ता है कि इसमें आपको हमको पार्शियल विड्रॉल चाहिए, तो जितना आपका प्रीमियम है उतना पार्शियल विड्रॉल कर दो। अभी बहुत सारी कंपनी ने ऑनलाइन भी कर दिया है, वो आपके बैंक में आ जाएगा और वही पैसा आप भर दो। एक ऑप्शन है कि अभी इसी सिचुएशन में पैसा नहीं है भरने का और पॉलिसी भी हमको इन्फोर्स रखने का है, तो पार्शियल विड्रॉल अलाउड है आफ्टर 5 ईयर। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। लाइफ इंश्योरेंस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये सुधीर जी का एक क्वेश्चन है, आप राम जरा देखेंगे क्या पूछ रहे हैं सर? हेलो राम। या 1 मिनट पारस। तो मंगेश प्रीवियस स्लाइड, मंगेश जी प्रीवियस स्लाइड। सुधीर हाँ, जी इसमें पूछ रहे हैं कि इज दैट बेनिफिट अवेलेबल इन टर्म प्लान ऑफ LIC? नहीं नहीं, LIC में नहीं है, मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया विथ प्रॉफिट प्लान, विथ प्रॉफिट प्लान। टर्म प्लान में ये सब नहीं होता। नहीं, नॉट LIC, he has mentioned ICICI. ICICI में सर है कि नहीं नहीं मालूम है, LIC में है मेरे को पता है। Okay. LIC का विद प्रॉफिट प्लान में अवेलेबल है, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। यस यस, नॉट इन अ टर्म प्लान बट इन विद प्रॉफिट प्लान ऑफ LIC, ये पर्टिकुलर प्लान में अवेलेबल है। यस यस यस। अच्छा, अभी ये स्मॉल स्केल एस्टैब्लिशमेंट जो है, फैक्ट्री है। क्वेश्चन है कि टर्म प्लान ऑफ ICICI अगर 6 महीने के लिए पेमेंट नहीं किए तो वो लैप्स हो जाएगा। अच्छा, लैप्स हो जाएगा। ओके, फेयर इनफ। क्योंकि इसमें कैसा रहता है ना, टर्म इंश्योरेंस में क्या है ना, आज की डेट में भी LIC इतना पुराना कंपनी है, 50 साल पुराना, फिर भी 20 लाख सम अश्योर्ड के ऊपर जितना भी सम अश्योर्ड आता है वो उन लोग री इंश्योरेंस करते हैं। इसके लिए इनको जब प्रीमियम नहीं मिलेगा तो वो सामने कैसे देंगे, इसके लिए वो लैप्स हो जाता है। ठीक है, अभी ये स्मॉल स्केल एस्टैब्लिशमेंट, फैक्ट्री वर्कर, उसके लिए IRDA ने क्या मैंने सर्कुलर के साथ दिया है कि सभी को इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट, वर्क प्लेस, ऑफिस एक्सेट्रा shall put in place arrangement for the implementation of the SOP, standard operating procedure। और उसमें बोला है कि आपको इंश्योरेंस कवर आपको देना चाहिए, अपने इसको मैंडेटरी किया है। फिर आप कोविड का दे दो या फिर आप ग्रुप इंश्योरेंस में दे दो या फिर आप इसमें दे दो, तो वो कंपलसरी किया है। मंगेश जी, मेरे को इसमें एक चीज आपसे जानना है कि अगर किसी का ESIC है तो वो उसको ये पॉलिसी लेना कंपलसरी है क्या? नहीं सर, नहीं ना, ESIC है मतलब किसी भी टाइप का एक इंश्योरेंस देना पड़ेगा। हाँ, अगर एम्प्लॉय कोई ESIC में कवर्ड है तो एम्प्लॉयर को उसके लिए अलग से कोविड इंश्योरेंस पॉलिसी, मेडिक्लेम या और तरीके का कोई पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं है। ESIC हैज ऑलरेडी क्लैरिफाइड दैट कोविड रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हो गए प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, ESIC इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट। परफेक्ट, तो ये भी सभी लोगों को एक एग्जांपल दे दिया। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। बट ये क्या वर्क फ्रॉम होम के केस में भी ये लागू होता है क्या? मंगेश जी, आपको क्वेश्चन पूछिए। Yes, Ram. अच्छा, If any employee who is covered under ESIC, whether he is tested positive, then the corporation will not ask whether he had found positive in the premises, company premises or at home.
So if it's found positive, then the treatment expenses will be borne by ESIC. Perfect. And माइक्रो कंपनीज के केस में जहाँ पे वी डोंट हैव ESIC, वहाँ पे क्या होता है? लेस उसमें देन आपको लेना पड़ेगा मंगेश जी, उसमें है ना मिनिमम उसके लिए आपको पारस जी से 7 या बात उससे करनी ज्यादा। पड़ेगी। हाँ अभी हम लोग वही कर रहे हैं, मंगेश जी ने भी काफी नहीं, बट उस केस अपना में कुछ पारस मैं आपको पूछ रहा हूँ कि माइक्रो कंपनीज में अगर जहाँ पे एम्प्लॉइज के लिए ESIC नहीं है हमारे पास आज की तारीख में, वहाँ पे वी विल टेक इंश्योरेंस, बट उस केस में भी वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस दोनों केस में वो लागू रहेगा ना? वो तो यस यस यस, उसमें रूल ऐसा है कि अगर 7 या उससे ज्यादा लोग हैं तो आपको ग्रुप में पॉलिसी कोविड का 2 डिजिट का पॉलिसी मिलता है। 7 से कम है तो फिर आपको इंडिविजुअली अपने हिसाब से लेना पड़ेगा। ओके, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड मंगेश जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी कोरोना हो गया, अभी तक किसी का कुछ कोरोना में और इसमें कुछ और क्वेश्चन है तो बताइए, या फिर हम लोग और आगे जाते हैं कि पोस्ट कोरोना क्या होगा, क्या होने वाला है, ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है। देखो व्हाट्सएप है ना, आज की डेट में सबसे बड़ा न्यूज चैनल बन गया है। तो व्हाट्सएप पे हमको बहुत कुछ आता है, वो हमको एक डायरेक्शन में लेके जाता है, न्यूज वाला हमको दूसरे डायरेक्शन में लेके जाता है। तो मतलब वी आर बॉम्बार्ड विथ इंफॉर्मेशन। Actually already we are in a ocean of information is available at your fingertips, और ये ऑलरेडी बॉम्बार्ड कर दिया है। तो क्या समझने का, क्या करने का, धंधा कब बढ़ जाएगा, अपना बिजनेस में कैसे फर्क पड़ेगा, उसके लिए ये मैं बताता हूँ। अगर किसी को क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग पोस्ट कोरोना का सिनारियो की बात करते हैं। शैल वी कंटिन्यू? यस। हाँ, तो ये पोस्ट कोरोना का ये लेटेस्ट है, ये आप अगर देख सकते हो तो आपको मैं स्लाइड भी शेयर कर दूंगा। बेसिकली ये क्या है कि पूरा ग्लोबल आज के अभी का जो बैंक है उसका ये इंटरेस्ट रेट है। यूके में 13 पैसा इंटरेस्ट रेट है, 13 पैसा, 1% भी नहीं। आज का रेट है ना एफडी का 5.5% है, SBI और HDFC का। यूके में 13 पैसा है, 1% नहीं, 13 पैसा, वो सिर्फ जीरो नहीं किया है। और यूएस में 10 पैसा है। यूएस में सबसे ज्यादा इसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी आया 1929 के बाद, सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट आया। जस्ट इमेजिन, अभी यूएस ने कितना $1 ट्रिलियन प्रिंट कर दिया जस्ट टू पंप मनी, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन ऐसा था कि भाई इधर पैनिक हो रहा है, सब लॉकडाउन है और मार्केट बढ़ ही जा रहा है, रोज शेयर मार्केट बढ़ रहा है, रोज शेयर मार्केट बढ़ रहा है, ये क्या हो क्या रहा है, मतलब पैसा कहाँ से आ रहा है। तो सबसे पहली बात, पैसा चीप हो गया, पैसा सस्ता हो गया। नंबर 2, उसका जो मुझे जो लिमिटेड नॉलेज है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उस कर रहा हूँ, और उससे अपने को अपने धंधे में क्या फर्क पड़ेगा वो बता रहा हूँ। पैसा सस्ता हो गया। नंबर 2, ये जो लोगों का इंटरेस्ट रेट डाउन हुआ है ना, इन लोगों को है ना वहां अपनी कंट्री से बाहर निकलना पड़ेगा लोगों को पैसा बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके उनके कंट्री में जो लोग सीनियर सिटीजन है वहां पर सोशल सिक्योरिटीज है, पेंशन फंड्स है, उसमें 3 to 4% साल का पेंशन आता है। जस्ट इमेजिन, वहां के फेड का रेट है 10 पैसा, ऑलमोस्ट जीरो, और उसको 4% देना है। वो पेंशन जिसको देना है उसको ना तो नहीं बोल देगा ना, और पेंशन फंड गवर्नमेंट का फंड डिफॉल्ट करेगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, पूरे वर्ल्ड में हंगामा हो जाएगा कि यूएस ने पेंशन फंड डिफॉल्ट कर दिया। तो उन लोग क्या करेंगे, ये पैसा बाहर निकलेगा, और ये पैसा बाहर निकलेगा ना तो इमर्जिंग मार्केट में आएगा, एंड दैट मनी विल चेज अ गुड असेट। अभी गुड असेट का मतलब क्या होता है, जो ऑलरेडी कंपनीज हैं, जिसका सिस्टम है, सब प्लेस में है, इकोनॉमिक मोट है, सब है, उसके पास जो क्वालिटी है उसके पास पैसा आएगा। इसके लिए रिलायंस में लॉकडाउन में 1 लाख करोड़ रुपए आ गया। जियो का अलग स्टोरी है, वो भी हम लोग आगे बात करेंगे क्यों उसमें इतना पैसा आ गया। आप देखो बहुत सारा कंपनी है ना डीलिस्ट कर रहे हैं, वेदांता करके कंपनी है वो डीलिस्ट कर रहा है अपने आप को। वो बोलते नहीं अभी ठीक है बहुत सस्ता है तो अपने ही शेयर मार्केट में वो वापस ले लो और डीलिस्ट कर दो, अपने को तो अपना विजिबिलिटी रिपोर्ट यहाँ से बहुत अच्छा दिख रहा है, हम तो अच्छा धंधा कर लेंगे, तो वो डीलिस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे कंपनी ने बायबैक किया है। जिस दिन रिलायंस जियो का फेसबुक का जो डील हुआ ना 43,500 करोड़ का, उसके कुछ दिन पहले रिलायंस ने बायबैक किया 11,000 करोड़।
11,000 करोड़ का शेयर उसने खुद का खुद खरीद लिया। उसके बाद ये सब डील हुआ, मतलब तभी 900 रुपया शेयर हो गया था और आज 1700 हो गया। मतलब उसने लॉकडाउन में सिर्फ 7,000 करोड़ उसने बैठे बैठे कमा लिया। जियो में तो अलग बात है, ठीक है। तो ये पोस्ट कोरोना कोविड में इसके बाद भी जो भी इंटरेस्ट रेट है ना आने वाले 2-3 साल तक वो यही रेंज में रहेंगे। एवरेज पूरे वर्ल्ड का आएगा 1%। तो इसमें इंडिया को फायदा क्या है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मंगेश जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आज मैंने जैसे बताया एसबीआई का एफडी रेट इतना है और एचडीएफसी का इतना है। इसका मतलब क्या होता है समझते हैं? मंगेश जी वो वीडियो जरा एक प्ले करना प्लीज। ये छोटा सा वीडियो है और मेरे को है ना इसके साथ रिलेट हुआ क्योंकि अभी लॉकडाउन था ना तो रामायण और महाभारत दिखा रहे थे तो मुझे वो कनेक्ट हुआ। तो एक ये रामायण का एक सीन है, आप लोग मुझे बताइए देख के कि ये क्या सीन है। आपको कुछ रिकलेक्ट होता है या अभी आपने रामायण फिर से अगर देखा है तो ये सीन क्या है, ये आप बता सकते हो तो बताइए। डिस्कशन थोड़ा सा लाइटर नोट पे भी होना चाहिए ना। मुझे ऐसा लगा कि ये सब क्वेश्चन सुन के लोग थोड़ा सा सीरियस हो गए तो कुछ हम लोग ऐसा कुछ वीडियो देखते हैं। जस्ट 35-40 सेकंड का ही वीडियो है। मंगेश जी उसमें वो करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। उसका क्लिपिंग कट करके इसमें प्रेजेंटेशन में कैसे डालने का वो मुझे नहीं आया, तो डायरेक्ट यूट्यूब से हम लोग प्ले करने का कोशिश करें। जस्ट वेट एक जस्ट। और ये टाइम में अगर आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आता है तो जस्ट नोटपैड पे लिख लीजिए। नोटपैड नहीं है तो मोबाइल में टाइप कर लीजिए, फिर आप पूछ सकते हो। मंगेश जी ने स्क्रीन दिख रहा है राम मेरा? यस हाँ पारस, इसको we फुल have स्क्रीन 20 यस more फुल minutes to go. हाँ मुझे दिख रहा है। इसको फुल स्क्रीन करके फिर प्ले कर दो। ये एक है ना वीडियो है रामायण का। ये आप मुझे बताइए क्या हो रहा है, किस चीज का वीडियो है? देखो रे गाओ रे नाचो रे ताली नाचो रे नाचो। पॉज हो गया। बस मंगेश जी बस हो गया। अच्छा कोई बताएगा अपना माइक अनम्यूट करके बताइए ये क्या है, क्या वीडियो है, लोग क्यों नाच रहे हैं? राम इज कमिंग बैक फ्रॉम द अच्छा वनवास। राम कमिंग बैक, ऐसा मतलब लगा। हाँ सर बोलिए ना सर। बस उतना ही है और क्या है। राम इज कमिंग बैक मतलब आफ्टर विनिंग द वॉर वो हाँ। अयोध्या में वापस आ रहे हैं हाँ और राम भगवान वापस आ रहे हैं इसीलिए सब लोग खुश है। हाँ उनको लगता है कि यार मुझे जो मिलना था उसके लिए सब लोग खुश है, हमको अभी राम भगवान मिलेंगे इसके लिए। तो कन्नन सर ने एकदम परफेक्ट किया, बोला कि ये राम भगवान जो रिटर्न आ रहे हैं ना उसका वीडियो है। तो हाउ दिस रिलेटेड टू अपना करंट सिचुएशन है उसको कैसे रिलेट करता है? मंगेश जी नेक्स्ट स्लाइड। राम भगवान है ना सॉरी हाँ ये यूट्यूब का था, हाँ ये स्लाइड। राम भगवान है ना 14 साल के बाद वनवास से आए तो वो 14 साल है ना वो मुझे क्लिक हो गया और 14 साल है ना अभी भी यही हो रहा है, इसीलिए मैंने ये वीडियो थोड़ा प्ले किया कि आज का एफडी रेट है 5.5%। 5.5% ग्रोस, उसमें फिर आपको 10,000 के ऊपर आपका इंटरेस्ट है तो टीडीएस कटेगा और उस पर टैक्स लगेगा। तो नॉर्मल हम लोग गिनते हैं कि अगर 5% इंटरेस्ट रेट होता है ना तो 14 साल में आपका पैसा डबल होता है। यहाँ पर 14 साल में पैसा डबल, वहां पे 14 साल के बाद राम भगवान वनवास से अपने अयोध्या में वापस आए, इसीलिए ये रिलेट कर रहा हूँ। तो जब खुशी कब होती है? जब हमको कुछ पैसा मिलता है,
हमारे पास कुछ आता है तभी हमको खुशी होती है, राइट? अगर आपको ये खुशी एफडी में इन पैसा इन्वेस्ट कर दिया ना आज, तो 14 साल के बाद होगी। क्यों? क्योंकि 5% पे एफडी 14 साल के बाद डबल होता है। तो करना क्या है आगे? नेक्स्ट स्लाइड। बिजनेस मॉडल है ना बहुत चेंज हो रहा है, बहुत मार्केट में बिजनेस है, बहुत सारा बिजनेस है। हमको लग रहा है मेरा धंधा नहीं चल रहा है, मेरे क्लाइंट पैसा नहीं दे रहे हैं, मेरा ये। बाकी मैं आपको बोलता हूँ बहुत सारे ऐसे बिजनेस है, लोग उसमें एडवांस पेमेंट लेके कर रहे हैं, ठीक है? तो बिजनेस लास्ट 10 साल में 15 साल में कैसे चेंज हो गया ना, वो देखते हैं। फ्यूचर ग्रुप, बिग बाजार, सबने देखा था। 2003 के पहले ये कभी हुआ नहीं था, लेकिन जब किशोर बियानी साहब आए और उन्होंने रिटेल किराना वाला जो है वैसा, उसने बोला कि चलो अपने एक बिग बाजार टाइप बनाते हैं कि हमारे पास आओ और सब चीज हमसे लो और हम आपको किराने वाला का जो है ना उससे बहुत सस्ता दे देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट चल गया। तो 2003 से 2008 में पेंटालून रिटेल, इसका कंपनी लिस्टेड का नाम है, उसका शेयर्स में अगर किसी ने इन्वेस्ट किया तो 40 टाइम हो गया, 5 साल में 40 गुना पैसा। भारती एयरटेल 2003 में आया और उसने बोला कि नहीं नहीं ये MTNL BSNL कुछ नहीं है, हम आपको इसमें दे देंगे। इफ यू रिमेम्बर, सभी लोग को पता होगा तो MTNL ने अपना सबसे पहला मोबाइल फोन सर्विस चालू किया था, उसका नाम था गरुड़ा और उसका रेंज आता ही नहीं था। तो तभी भारती एयरटेल लेके आया कि हमारा सर्विस करो, हमारा नेटवर्क बहुत अच्छा है, ये सब। तो वो पहली बार बिजनेस मॉडल चेंज हुआ 2003 से 2008 में। भारती एयरटेल का भाव हो गया 50 गुना, 50 टाइम्स। तो जब बिजनेस मॉडल चेंज होता है ना, धंधा करने का स्टाइल चेंज होता है ना, लोगों का हैबिट चेंज होता है ना, तभी हमको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता है वेल्थ क्रिएट करने का। अभी बहुत बिजनेस चेंज हो रहा है, बिजनेस मॉडल चेंज हो रहा है। मंगेश जी दूसरा स्लाइड। ये लाइव एग्जांपल है। रिलायंस इंडस्ट्री ने ऑल टाइम हाई किया अभी, रिलायंस इंडस्ट्री ने, ठीक है? उसने आज से 2-3 साल पहले ब्रिटिश गैस को, बीजी को अपना 40,000 करोड़ का शेयर बेचा और वो 40,000 करोड़ लेके जियो बोल के एक कंपनी करके आया और फिर डेट लिया, ये किया वो किया। लोग बोलते थे क्या करेंगे, और आज जियो डेट फ्री हो गया। बिजनेस मॉडल चेंज हो रहा है। भारती एयरटेल 2003 से है। बिजनेस में एक टर्म यूज होता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जो आदमी वो धंधे में पहले से है ना, उसको बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। नया कोई एंटरप्रेन्योर उसमें आता है ना तो उसको कॉम्पीट नहीं कर सकता, लेकिन ये जियो ने इसको मार दिया आज। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि पहले क्या था, जस्ट इमेजिन, आप सोचो कि आज से जस्ट 2-3 साल पहले डेटा MB में आता था कि आपको ये प्लान है, उसमें MB में 300 MB मिलेंगे। हम लोग सोचते थे, मैं तो सोचता था कि ये व्हाट्सएप पे फाइल आया है तो इसको डाउनलोड करूं या नहीं करूं। मोबाइल में वीडियो में डाउनलोड करेंगे तो इतना इसमें MB यूज हो जाएगा। ये सब चीज है ना, इसने निकाल दिया। ये चीज है ना, बिजनेस मॉडल चेंज जो है ना, चेंज, ये भारती एयरटेल कर सकता था तभी वो डेट फ्री कंपनी था, बहुत पैसा कमा रहा था, लेकिन उसने नहीं किया। उसने लगा ऐसा थोड़ी होता है। अभी जो आदमी को एक आदत पड़ जाती है ना, फिर उस छूटती नहीं है जल्दी से, और उनको लगता है हम तो मार्केट में लीडर है, हमको कौन हिलाएगा। रिलायंस ने आके उसने सबसे पहला बोल दिया, भाई forget about 300 MB 700 MB 1.5 GB MB, चलो मजा करो, और वो भी एक दिन का, पूरे महीने का नहीं। तो उसने पूरा इंडस्ट्री चेंज कर दिया। ये करने के बाद भी सब लोग उसको पीछे पीछे भागे और कोई उसको पिकअप नहीं कर सका। और आज लोग बोल रहे हैं कि रिलायंस जियो का, रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस जियो अलग अलग है, उसका IPO आएगा 2-3 साल में। रिलायंस जियो का वैल्यूएशन 5 लाख करोड़ हो गया, जो आज भारतीय एयरटेल का 5 लाख करोड़ नहीं है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, बहुत सारा बिजनेस मॉडल चेंज हो रहा है। आप अगर मार्केट में नहीं रहोगे ना, तो ओल्ड बिजनेस मॉडल में रहोगे ना, तो आप नहीं टिक सकोगे। HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर साबुन तेल बनाता है, ठीक है, उसने लाइफ टाइम हाई कर दिया। और नेस्ले और HUL ऐसा कंपनी है जिसने लॉकडाउन के पीरियड में अपने जिंदगी का सबसे ज्यादा पैसा अब भी कमाया है और लाइफ टाइम हाई पे शेयर चल रहा है। ब्रिटानिया, पार्ले लिस्टेड कंपनी नहीं है। पार्ले कंपनी ने बोला कि पूरे लाइफ में जितना बिस्किट बेचा उसने लास्ट ईयर और इसमें, सबसे ज्यादा प्रॉफिट उसने
ये लॉकडाउन में किया, सबसे ज्यादा बिस्किट उसका बिका है। वैसे भी इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा बिस्किट पार्ले का बिकता है। डोमिनोज पिज्जा आप देख लेना गूगल में सर्च करके, लॉकडाउन के पहले जितना उसने पिज्जा बेचा ना, उससे ज्यादा पिज्जा लॉकडाउन में बेचा। हम नहीं खाते हैं लेकिन ये बिजनेस है, इसका लिस्टेड कंपनी का नाम है जुबिलेंट फूड वर्क्स। तो क्या है, बहुत सारा बिजनेस मॉडल चेंज हो रहा है। फार्मा कंपनी हाइड्रोक्लोरिक्विन करके एक दवा है, हम लोग सब लोग को ये प्रोनाउंसिएशन भी, पहला तो नाम भी समझा और प्रोनाउंसिएशन भी अभी अभी समझा। ये कंपनी इप्का लेबोरेटरीज करके बनाती है, बहुत सारी कंपनी बनाती है, अजेंटा फार्मा ये सब भी बनाती है। तो फार्मास्यूटिकल की जितनी कंपनी है, डीवीज लैब, इप्का, फिर जो भी आप फार्मास्यूटिकल बोलो, सब लोग अभी इसमें है। मेरा बोलने का मतलब ये है, 100 से ज्यादा कंपनी ने 52 वीक हाई लॉकडाउन में बनाया। इसका मतलब कुछ तो चल रहा है। मेरा धंधा नहीं चल रहा है लेकिन कुछ तो चल रहा है। तो जो भी आप सक्सेसफुल लोगों को पूछोगे ना, तो वो हमेशा बोलता है कि जब आपका बिजनेस बड़ा होता है ना, देन उसको डाइवर्सिफाइड करना पड़ता है। सबसे पहला क्या होता है, एक बिजनेस चालू हुआ, उसको 5, जो मेरा लिमिटेड नॉलेज है उस हिसाब से बता रहा हूँ, उसमें 5 करोड़ तक पहुंचा, 5 से 50, इसको बोलते हैं स्केल अप। फिर एक एग्जांपल है, फिर वो 50 से 500 भी हो सकता है, एक स्केल अप होता है। उसके बाद एक स्टेगनेंट आ जाता है, फिर वो वहां से कंपनी रिवाइव होगा तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। बेस्ट एग्जांपल मारुति, एक जमाने में उसका बड़ा कार सिडान कार नहीं बिक रहा था, मारुति 1000 आया था, उसके बाद बड़ा नहीं बिका, उसके बाद उसका ये सियाज बिका और अभी सब बड़े कार बिक रहे। तो मारुति एक टाइम में ना एकदम स्टेगनेंट हो गया था, फिर उसने अपने आप को रिवाइव किया, नए मॉडल्स लाए, और आज बलिनो पहले इंडिया में रिलीज होता है, फिर जापान में और थाईलैंड में जाता है। बलिनो पहला यहाँ रिलीज होता है, यहाँ बनता है और पहले यहाँ पे रिलीज होता है। तो उन्होंने अपने आप को चेंज किया। अगर नहीं करेंगे ना, तो बिजनेस मॉडल से हम लोग बाहर निकल जाएंगे। अगर आप अपना बिजनेस मॉडल चेंज नहीं कर सकते हो, देखो आज से 10 साल के बाद, 15 साल के बाद मेरा कौन क्लाइंट बनेगा? आज का जो यंग जनरेशन है। मैं आपको डेटा बताता हूँ, लोग बोलते हैं हम चाइना के साथ कैसे कंपीट करेंगे। मैं तो चाइना नहीं गया हूँ, लेकिन मेरे जो दोस्त गए बोलता है वहां का जो मॉल है जहाँ पर उनका शॉप होता है, 95% लेडीज होते हैं। चाइना में सबसे ज्यादा लेडीज लोग काम पे हैं, जो हमारे पास नहीं है। लेकिन ये लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम क्या होता है, हमने Paras, we have lost your connection. और हम लोग ने थोड़ा सा बोलते हैं ना डेलीगेट भी किया। तो आवाज आ रहा है? हाँ Paras, 10 more minutes to go. Paras, Yeah. you should change it to Geo then. ओके, तो Paras, ये 7 to 8 more minutes to go. यस यस यस, परफेक्ट हो जाएगा उसमें। हाँ. तो बेसिक यही है कि अगर आपका बिजनेस चेंज नहीं कर सकते हो, एक रेस्ट्रिक्शन है, तो आप दूसरी सब चीज में इन्वेस्ट कर दो। तो इन्वेस्ट करने का क्या बेस्ट तरीका है? इक्विटी मार्केट में। इक्विटी मार्केट कोई सट्टा बाजार नहीं होता है, इट्स अ बिजनेस। 7600 कंपनी लिस्टेड है, इसमें से 2000 एक्टिव कंपनी है जो रोज उसमें सौदा होता है। उसमें से सिर्फ 20 से 25 कंपनी अच्छी चाहिए, तो अपना 12 से 15% आने वाले 12-15 साल में बन जाएगा, और उतनी कंपनी तो है ही है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये मालूम है आपको, इंडिया ने अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। ये एक्चुअली है ना, जितने हम लोग को व्हाट्सएप आते हैं ना, वो सब नहीं, हम लोग है ना बिना काम के बहुत सारे चीज देखते हैं, और हम लोग बोलते हैं कि नहीं आ जाता है। तो हमारा माइंड डस्टबिन नहीं है, कुछ भी उसके अंदर नहीं डालने का। ये मेक इन इंडिया का बिगेस्ट सक्सेस है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप आज सुन लो और इसको फॉरवर्ड करना। वैग 12 करके ये 12,000 हॉर्स पावर का हमने इंजन बनाया है। ये सिर्फ गुड्स कैरियर के लिए है। इसका आप सुन लो, 12,000 हॉर्स पावर का इंजन बना के इंडिया बिकम 6th कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया बिकम 6th कंट्री। प्लस ये इसका खासियत क्या है, नॉर्मली हमारा जो गुड्स कैरिंग व्हीकल हम लोग जिसको मालगाड़ी बोलते हैं, उसका स्पीड देखा है 20-30 का स्पीड होता है, और बहुत लंबा होता है। क्यों? क्योंकि इतना लंबा उसको माल करके उसका स्पीड बढ़ नहीं सकता है। ये इंजन में इसका कैपेसिटी है 6000 टन। इसका मतलब ये होता है एक ट्रक में नॉर्मली 10 टन माल आता है, 600 ट्रक में जितना माल आता है उतना ये सिर्फ अकेला एक इंजन उसको खींच सकता है।
विद द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। इसका हाईएस्ट स्पीड है 120। ये 80 से 100 किलोमीटर के बीच में भागेगा और इसमें अपना ऑलरेडी ईस्टर्न कॉरिडोर, ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर पे काम चालू हो गया है। मतलब ये कंपनी के साथ मेक इन इंडिया में डील हुआ 25,000 करोड़ का। फ्रांस का कंपनी है आल्स्टॉम करके, उसने 17 में इंजन बना दिया, उसका टेस्टिंग होता है। ये स्पीड पे उन लोग ने टेस्ट कर लिया और 19 मई को, मतलब अभी लॉकडाउन में, ये ऑफिशियली इंडियन रेलवे में शामिल हो गया। ये बनने वाली कोई बात नहीं है कि बनेगा नहीं बनेगा, ये हो गया ऑलरेडी। अभी इसका 800 इंजन बनना है। इसके साइट पे है, वैक 12 करके डालना, वीडियो भी है इसमें, साइट पे भी है। 2028 तक 800 इंजन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। 2-4 साल आगे पीछे, इंडिया में 3 साल का ग्रेस पीरियड कोई भी दे देता है। 800 इंजन है, 2030 तक इतना पैसा इसमें बन जाएगा। जस्ट इमेजिन कि अगर ये है तो सप्लाई चेन क्या होगा, और हमने पहले ही चालू कर दिया था। इसका स्टार्ट हुआ था 2006 में और उसके बाद ये अभी 2015 में सैंक्शन हुआ और 2019 में ये आ भी गया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। 2-3 स्लाइड बाकी है, बस खत्म करते हैं। मंगेश जी नेक्स्ट स्लाइड। ये ईस्टर्न कॉरिडोर है जो ऊपर लुधियाना से स्टार्ट होता है और दालकुनी करके एक जगह है कलकत्ता के नजदीक, वहां पर खत्म होता है। और ये वेस्टर्न कॉरिडोर JNPT से स्टार्ट होता है और ऊपर दादरी में वहां पर खत्म होता है। और ये प्रपोज्ड है, अब बहुत ब्लर है नीचे से, ये प्रपोज्ड है। इतना हो गया इसमें, दादरी से 109 किलोमीटर और 300 किलोमीटर का काम हो गया, जिसके ये ट्रैक पे इन्होंने ये टेस्टिंग भी कर लिया। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बहुत सारा चीज है ना इंडिया में हो रहा है। आज से अभी देखो, मैं कोई गवर्नमेंट का फेवरेट नहीं हूँ और मैं कोई भक्त नहीं हूँ, लेकिन अगर आप ऐसा बोलेंगे ना तो इस गवर्नमेंट में काफी अच्छा काम हुआ है। 2014 के पहले पर डे रोड बनता था 35 किलोमीटर पर डे। ये नाई का NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डेटा है। और अभी 135 किलोमीटर पर डे बन रहा है इसके। अच्छा आपको बताता हूँ, नितिन गडकरी इज डूइंग वेरी गुड जॉब। आप उसको सर्च करो ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। नाउ जस्ट इमेजिन कि अगर 100 के स्पीड से 6000 टन माल का ये डेडिकेटेड है फ्रेट, इस पे और कोई रेल नहीं चलेगा और यहाँ पर कॉरिडोर भी है, मतलब गुड्स का लेन भी है इसके लिए, ट्रक के लिए, और ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। इंडिया में बहुत पैसा बनने वाला है आने वाले 10-15 साल में। नेक्स्ट स्लाइड। बस ये लास्ट स्लाइड है और फिर खत्म करते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आई डोंट नो, प्लीज आप डोंट टेक इट पर्सनली। कभी भी है ना, हर चीज का एक टाइम होता है और हर चीज का एक स्टार्ट डेट और एंड डेट होता है। हम एंटरप्रेन्योर है ना, वो कभी रिटायर नहीं होते हैं। लेकिन एक स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर करके एक कॉन्सेप्ट है, ये आपने देखा भी होगा कि जितने भी बड़ी कंपनीज है ना, नारायण मूर्ति का नाम लेते हैं, नारायण मूर्ति है ना इंफोसिस में स्टेक होल्डर है, शेयर होल्डर नहीं। इसका मतलब क्या है, वो रोज काम करने को नहीं जाता है, उसने कंपनी चलाने को दे दी है। इसका मतलब क्या होता है कि एक टाइम था, उसने डिसाइड किया कि बस हो गया, इसके बाद ये कंपनी चालू रहेगा, मैं भी रहूंगा, सब रहेगा, बट मैं अभी ड्राइविंग सीट से हट जाता हूँ, ये चलाने के लिए दे देता हूँ। ऐसा हमको प्लानिंग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, मेरे डैडी इस बिजनेस में नहीं थे, मैं हूँ, मेरे बच्चे आएंगे, आई डोंट नो। तो फिर आपका सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर, आपका धंधा कौन चलाएगा, सेकंड लाइन ऑफ ये कौन करेगा, ये आपको सोचना चाहिए। और ये सब चीजें ना अपने गोल से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि आप देखो, आपका हेल्थ अच्छा है, आपका फैमिली रिलेशन अच्छा है ना, तो आपका बिजनेस अच्छा होगा, और आपका बिजनेस अच्छा है ना, तो आपका हेल्थ और फैमिली रिलेशन अच्छा, ये सब लिंक्ड है। तो अगर आपने अपना प्लानिंग नहीं बनाया ना, तो बना लो। ये बहुत ही प्रॉब्लम वाला चाहिए, एग्जिट स्ट्रेटजी हमेशा होना चाहिए। और मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, टाइम कम है, बहुत सारा एग्जांपल दे सकता हूँ, पर्सनल लाइफ का एग्जांपल कि क्या क्या हुआ है और इसमें क्या फ्रस्ट्रेशन आता है, किस टाइप से होता है। लेकिन मैं लास्ट चीज बोलता हूँ सिर्फ, और फिर अपन खत्म करते हैं। कभी भी है ना, ऐसा बोलते हैं कि कोई भी चीज विल पावर बहुत होना चाहिए। विल जो है ना, इट्स डिवाइडेड इनटू 3 थिंग, विल टू स्टार्ट, विल टू कंटिन्यू और विल टू स्टॉप। हमारा जो कार है ना, कार, उसमें ये 3 चीज होती है कि स्टार्ट करना, इग्निशन, फिर उसको जो स्पीड है उस पर कंटिन्यू उसको चलाते रहना, या फिर उसका फास्ट करना, और दूसरा होता है ब्रेक।
आपको मालूम है सबसे ज्यादा फ्यूल किस चीज में खर्चा होता है? ब्रेक मारने में, रोकने में सबसे ज्यादा फ्यूल वहां पर खर्चा होता है। इसी तरह जिंदगी में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्या चीज है? स्टॉप करना। स्टॉप करने का मतलब ये, रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है रिटायर फ्रॉम वर्क, नॉट लाइफ। तो आपको ऐसा होना चाहिए कि मैं कब रिटायर होऊंगा, कब करूंगा। कनन सर हमारे साथ हैं, कनन सर ने बहुत अच्छा, हम लोग लॉकडाउन के पहले उनका सेशन किया था, उसने बहुत बताया, लेकिन उनसे ना मुद्दे का बात किसी ने पूछा नहीं। मैं भी था उसमें, लेकिन टाइम नहीं था। जितना तकलीफ, जितना विल, जितना लोगों का ताना या सुनना जो बिजनेस स्टार्ट करके लगा था ना आपको, उससे डबल ट्रिपल 5 गुना ज्यादा बिजनेस बंद करने को लगता है। ये गट्स चाहिए, कोई भी नहीं कर सकता है। एक बार 10 करोड़ 15 करोड़ कमाओ और उसके बाद छोड़ के दिखाओ, पोस्ट हो, पैसा हो, कुछ भी, इट्स रिक्वायर। और मैंने देखा है लोगों का है ना लाइफ में बहुत बिजी होते हैं, 10 गोली खा रहे हैं, 15 गोली खा रहे हैं, ऐसा सब कर रहे हैं। इट इज दिस इज नॉट लाइफ। अपना बिजनेस एंटरप्रेन्योर को ये सब होना चाहिए। तो इसी के साथ मैं मेरा बोलने का कंप्लीट करता हूँ। अगर किसी को क्वेश्चन आंसर है, हमने ग्रेजुअली बहुत ही धीरे धीरे प्रेजेंटेशन किया है तो शायद हो गया होगा, लेकिन किसी का भी कुछ है पर्सनल तो मेरा नंबर ले सकते हो या फिर चैट बॉक्स में या मेल में कर सकते हो, मैं उसका आंसर दे दूंगा। सो थैंक यू, आपने इतना पेशेंटली सुना। और इसके बाद भी जो सर्क्यूलर्स जो है आपको मेल पे मिल जाएंगे, मैं राम के साथ शेयर कर दूंगा। एंड इट वाज माय एक्सपीरियंस, ये कोई लेक्चर नहीं था, सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने इतने लाइफ में देखा है और वो मैंने आपके साथ शेयर किया। सो थैंक यू वेरी मच। Okay, just wanted to check up with you, Paras. Is there any हाँ, rule of thumb, a figure, what is the amount one should be taking a health insurance per person? And is it, even if you say that it is depending on the age or anything, but I'm just saying a rule of thumb, a ballpark figure, you can say? अगर आप मुंबई थाना में रहते हो सर, तो हमने है ना ये एक्चुअली किया है कि जुपिटर का रूम रेंट कितना है, फोर्टिस का कितना है, फिर उसको सिंगल रूम लेंगे तो कितना है, उस बेसिस पे बोल रहा हूँ। इसमें हमने बहुत सारा काम किया है कि पूरे मुंबई में देखो, जैसे आप पैसा दोगे वो आपको सर्विस मिलेगा, राइट। बिजनेस फ्लाइट में भी बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास होता है। तो नॉर्मली अगर हम लोग मुंबई और थाना में रहते हैं और आपका 2 अडल्ट 1 चाइल्ड है, तो आपको कम से कम 20 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए, 20 से 25 लाख। 2 अडल्ट 2 चाइल्ड कम से कम 30 लाख तक का इंश्योरेंस होना चाहिए, 30 to 50 के बीच में। और आप देखेंगे ना तो 20 लाख का जो इंश्योरेंस है और 20 से 50 करोगे ना, उसमें बहुत कम गैप होता है। The premium. यस सर। जैसे मेरा एग्जांपल दे दूं, माय एज इज 43, मेरे को 10 लाख के लिए 13,000 रुपया प्रीमियम है और 50 लाख के लिए 17,200 है। 17,200 में मेरे पास आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का 50 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है और वो मैंने 3 साल पहले दिया है। भक्त लोगों के लिए कुछ डिस्काउंट है क्या? सर सबके सामने ये मत करो, कर देंगे आपके लिए, ऐसा कुछ नहीं। यस, मेरा जो शेयरिंग था वो कंप्लीट हो गया। आगे आप सेशन कंटिन्यू कीजिए प्लीज। If members have any questions, then participants have any questions, you all can kindly unmute yourself and ask Mr. Paras the question. पारस जी, आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी अगर आप चैट विंडो में आप टाइप कर देंगे तो इट विल बी गुड फॉर एवरीवन. इफ यू कांट डू इट राइट नाउ, देन यू कैन जस्ट शेयर इट ऑन द एज अ मैसेज. आई थिंक पीपल कैन नोट इट डाउन. यस, चैट में लिख देता हूं मैं, मेरे को वो करना पड़ेगा। ठीक है, मैं बाद में लिखता हूं। आप बता दीजिए, ओरली आप बता दीजिए. 98194 61741. फिर से रिपीट करता हूँ, 98194 61741. परफेक्ट राम, थैंक यू। So if anyone has wants to talk to Paras, they can directly talk to him. Any questions you all can just ask right now. We can take 1 or 2 more questions. You all can unmute yourself and ask a question. Otherwise, we will end the session with Deepak ji sharing.
Deepak, over to you. To Ram, Deepak is not there, I think so. You have to close this with vote of thanks. सुधीर जी, आप है ना मुझे पर्सनली फोन कीजिए. ये है ना डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, क्या आपको चाहिए, उस हिसाब से तो मैं बात करूंगा सर आपसे. yeah, Sudhir ji is asking which is the best health insurance company nowadays. बेस्ट का डेफिनेशन है वो हम बाद में बात करेंगे. ठीक है. बेस्ट मतलब क्या? Okay. Fair enough. Paras, thank you for the wonderful session. It was quite detailed. You covered various aspects, right from do's and don'ts of the COVID. Moving on to do's and don'ts of the COVID. Moving on to what to do in current situation as a business owner. How to think differently. The business models to look at. How to work more towards the new generation at this point of time, how to plan your products for the new generation and so on, right? So it was really a very wonderful, a very detailed session, a very different session and for today's time, it was quite apt. Okay. Thank you, Paras. I'm sure everyone would have benefited from this particular session. With this, I would like to end the session for today. Thank you once again to all participants for attending the session. Thank you to the committee for arranging the session of Paras. Thank you so much. Bye-bye. और किसी को भी कोई अलग टॉपिक पे आपको अगर कोई है पार्टिसिपेंट को ये है रिक्वेस्ट कि आपका फीडबैक दे दीजिए. किसी को भी कोई टॉपिक है अगर इस पे बात करनी है, आपको सेशन चाहिए तो हम लोग वो टॉपिक अरेंज कर सकते हैं, ट्राई करेंगे. So one more thing is that we have our Facebook page, fb.com/10network. Please follow our page for regular updates about our upcoming sessions. And we have also launched our YouTube channel. We will share the link over the email. Please follow our YouTube channel also. Subscribe and follow our YouTube channel. Thank you, participants. See you all again. Thank you. Next Thank you all. session on Thank coming you. Saturday. Bye Thank till you, then. sir. Thank you. Thank you.